rather J&K का India का. There's a prestigious college. Sir, despite your deep academic background, you chose the army over conventional engineering path. क्योंकि हमने देखा है सर एनआईटी से करने के बाद डाइवर्स फील्ड में लोग चले जाते हैं. वहाँ का इंटेलेक्ट इतना हाई है कि उधर से निकलने के बाद कहीं भी इंजीनियरिंग के लिए चले जाएं, दे कैन वर्क एनी. उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू लिया मेरा. उसने डोगरी में पूछा कि 12 सत्ते कि 12 7 या 12 into 7 कितने होते हैं. अब मुझे तो खाली गिनती यार फादर ने सिखाई थी आपको 100. अब ये तो मुझे पता ही नहीं था ये क्या है 12 into 7. पर साथ वाले टीचर ने बोला 84, 84 84 बोल दो 84. हेडमास्टर देख रहे हैं मुझे कि टीचर बता रहा है, मैंने बोल दिया 84. तो ही फेल वेरी हैप्पी, ओ लड़के को सारा आता है और इसको ऐसा करो फोर्थ में डाल दो. मैं देखता था हर संडे को घर में हमारे भीड़ होती थी, 8-10 लोग. उन्होंने फाइलें घर में ही खोली, किसी की ट्रांसफर, किसी की पोस्टिंग. तो हम पूछते थे भाई हमें भी थोड़ा टाइम शाइम दो. बट यू आर सो पॉपुलर एंड सोशल वर्क, इट इज नॉट कि ऑफिस का काम भी घर में, बट इज डेडिकेशन पार्ट वी जस्ट लर्न फ्रॉम फादर एंड हार्ड वर्क एंड सोशल वर्क. ह्यूमिलिटी और इसमें कोई ईगो नहीं आना चाहिए जैसे अपने अपने लोअर रैंक के ऑफिसर्स दिखा. There, when I joined, we were 8 from the engineering college. Out of, let us say, out of 110 technical students, 8 were from Jammu Kashmir Engineering College. Good morning, viewers. Today we are at Tavi Tales episode 15. Episode 15, I was discussing with Dr. Vikas. This is a milestone for us. We started our journey and now at 15, which is a milestone in itself, today we have a very, very special guest for this milestone episode. And we have titled this particular episode as A Person Who is a Dogra Warrior, Scholar and a Nation Builder. He led his life of purpose. Today we are having Major General S.K. Sharma, AVSM, retired with us. Namaste and heartfelt welcome to Tavi Tales. Sir, it's a series जिसमें हम आपकी तरह के esteemed डोगरास को we cover their untold stories of valor, wisdom और अगर heritage के ऊपर जो भी काम हुआ है in the land of Dugar, हम उसको cover करते हैं sir in form of our repository. Today's episode is not just an episode, it's a journey. A journey into the life of a man who served the nation in battlefields and classrooms alike. A man whose story is etched across the high altitude terrain of Leh, the conflict zones of Nagaland, the diplomatic corridors of Israel and Hungary, and the cultural heartland of Jammu. Our guest today, Major General S.K. Sharma, AVSM, is a name synonymous with dedication, discipline, and Dogra pride. Born and raised in Jammu, Sir is an alumnus of NIT Srinagar, IISc Bangalore, and Osmania University. He joined Indian Army in 1972 and went on to serve in some of the most challenging operations in modern Indian military history, from Sri Lanka to Kargil. But General Sharma's service didn't end with the superannuation. For the last 17 years, Sir has mentored thousands of students as an academic leader in might, authored books to guide youth, and championed the revival of Dogri language and culture with relentless passion. This is an opportunity. आज सर की एक बुक जो लास्ट वीक रिलीज हुई है जिसका नाम है डोगरा कल्चर, अ फ्रेमवर्क फॉर रिवाइविंग एंडेंजर्ड कल्चर्स एंड लैंग्वेज ग्लोबली. सर ने एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना दिया है कि किस तरीके से, जिसके बारे में सर डिटेल में बात भी करेंगे, कि किस तरीके से जो जीवंत लैंग्वेजेस हैं जब वो खत्म होने लगती हैं तो उसको रिवाइवल करने के लिए, उसको एक लिविंग लैंग्वेज बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है. So today, dear listeners, we bring you the voice of a true son of the soil, a soldier, a scholar, and savior of Dogra heritage. Please join me and Dr. Vikas in welcoming Major General S.K. Sharma AVSM to Tavi Tales. Sir, it's a true honor for us to have you with us. So nice, Professor Vikas, Ajay ji. I think you gave a very, very detailed introduction about me, which probably is some part of this I have even forgotten. And I just went through a few of your Tavi Tales episode. Excellent. I think you are doing this. Tavi Tale is doing a marvelous job. And the repository which you are creating for the youngster, I think it will go a long way. I think I must thank Dr. Vikas Pada also. For I think both of you are doing an excellent job. And thanks for all this, for inviting me also here. Thank you, Thank sir. you. थैंक यू सर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. ये जैसे अजय जी ने बताया कि ये एक
माइलस्टोन एपिसोड है, 15th एपिसोड है हमारी एक छोटी सी जर्नी का। तो आपका इस एपिसोड में आना, ये इट्स एक रियली हमारे लिए एक ऑनर है। और जितनी आपकी सर बहुत सी डाइवर्स फील्ड्स में आपने काम किया है, कहाँ आर्मी में मिलिट्री वेलर, और कहाँ फिर एकेडमिशियन, और अब राइटर। तो मुझे लगता है कि बहुत ही फ्रूटफुल एपिसोड होने वाला है ये हमारे लिए। तो आपका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं सर। और सर स्टार्ट करते हैं हम आपकी जर्नी से सर, आपकी रूट्स से। क्यों, जैसे अजय ने बताया कि आपकी जो इनिशियल ब्रिंगिंग अप वो जम्मू में ही हुई सर, ट्रेडिशनल डोगरा हाउस होल्ड में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है सर। तो आपके सर जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे, जो बचपन था, वो कैसा था, वो हम जानना चाहेंगे। और ये जानना चाहेंगे आप किस तरह के स्टूडेंट थे, शुरू से ही ऐसे ब्राइट और इंटेलिजेंट थे, या बाद में चल के हुए, या और ऐसी कौन सी वैल्यूज थी सर जो आपके मेंटर्स ने आप में डाली, कि जिन्होंने आप पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया और आपकी थिंकिंग पे, और जो आज आप कर रहे हैं उस चीज पे। जैसे आपने बताया कि मैं जम्मू की एक हार्डकोर डोगरा फैमिली से हूँ। सिंपल फैमिली, एवरेज फैमिली। मुबारक मंडी के पास, जम्मू में सभी मुबारक मंडी जानते हैं, उसके साथ ही मेरा घर था। फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मेरे साथ स्कूलिंग का तो बहुत अजीब एक हादसा टाइप है कि मैं अपने फादर का तीसरा सन था। पहले दो ने तो LKG, UKG, जिसको उस जमाने में कायदा पहली कायदा दूसरी की पहले। है ना, वो करते थे। तो देवर, तो इन द मीन टाइम ए फादर गॉट ट्रांसफर टू दरबार मूव। 6 महीने जम्मू, 6 महीने श्रीनगर, एंड ही प्रोबब्ली फॉरगॉट अबाउट मी। मेरी थोड़ी हाइट शायद थोड़ी कम थी। उनको लगा कि ये तो अभी छोटा ही है, स्कूल अभी तो काबल नहीं हुआ होगा। टिल दैट समबडी पॉइंटेड आउट टू माय फादर कि भाई आपका बेटा तो ऑलरेडी 7-8 साल का हो रहा है, ये तो गलियों में घूमता रहता है। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड ऑफ माय, मैं तब तक स्कूल नहीं गया था। तो तब दरबार मूव का टाइम, मेरे फादर ने मुझे घर में ही फिर कुछ अल्फाबेट्स हिंदी के क ख ग 1 2 3 4 गिनती 100 तक सिखाई। भाई स्कूल में जाना है, थोड़ी अगली क्लास में जाए, कायदे में ना जाए, मींस। सो बाय द टाइम दरबार मूव के माय फादर वेंट टू श्रीनगर, तो मैं तो वहां का वहीं रह गया। देन ही टोल्ड हिज फ्रेंड फ्रॉम श्रीनगर, टीचर थे, भाई ऐसा करो मेरे बेटे को स्कूल ले जाओ, मोहल्ले में जो स्कूल है जहाँ आजकल DBN है, दीवान बद्रीनाथ स्कूल, वही उसकी की बिल्डिंग थी उधर ही, तो उस स्कूल में दाखिल करवा दो। तो टीचर टुक टुक मी टू द स्कूल। मैं जब गया तो सामने हेड, छोटा सा कमरा, उन दिनों छोटे छोटे स्कूल होते थे, प्राइवेट स्कूल, छोटा सा कमरा, उसमें हेड मास्टर बैठा है कुर्सी पे, बेंच आगे उसका टेबल है, मैं और सामने एक बेंच है, और मैं और टीचर हम बेंच पे बैठ के। तो टीचर ने कहा जी स्कूल के लिए नई एडमिशन आई है, तो थोड़ी अगली क्लास में थोड़ा इसको करना है। तो एक तो हेडमास्टर बड़ा खुश हुआ कि चलो कोई तो आया। उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, तेरा इंटरव्यू इंटरव्यू लिया मेरा। उसने डोगरी में पूछा कि 12 सत्ते, कि 12 7 या 12 into 7 कितने होते हैं। अब मुझे तो खाली गिनती यार फादर ने सिखाई दी अप टू 100। अब ये तो मुझे पता ही नहीं था ये क्या है 12 into 7। पर साथ वाले टीचर ने बोला 84, 84, 84 बोल दो, 84। हेडमास्टर देख रहे हैं मुझे कि टीचर बता रहा है, मैंने बोल दिया 84। तो ही फेल वेरी हैप्पी, ओ लड़के को सारा आता है, और इसको ऐसा करो फोर्थ में डाल दो। तो आई वॉज टेकन स्ट्रेट वे टू क्लास 4। तो मैंने ना नर्सरी की है, ना लोअर KG, अपर KG, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड फोर्थ में स्ट्रेट वे चला गया। जबकि एग्जाम फोर्थ का आने को 3 महीने ही बचे थे। मैं नवंबर में मैंने ज्वाइन किया, एंड माई एज वॉज अराउंड 8 ईयर होने वाली थी। तो वहां जाके द ओनली थिंग आई लर्न फ्रॉम द टीचर, उनको लगा ये लड़का बहुत ही हाई क्लास में आ गया है और इसको तो कुछ आता नहीं है। बट टीचर ने एक ही बात सिखाई, उसने कहा बेटे तुम आ गए हाई क्लास में, तो हाई क्लास में ही रहोगे। एक चीज बात सीख लो, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अल्फाबेट से शुरू किया उसने, गिनती भी छोटी छोटी, छोटे इंग्लिश, इंग्लिश भी, इंग्लिश तो सिक्स में होती थी पर हमारे स्कूल में फोर्थ में थी। तो इंग्लिश, और ये रोज थोड़ा थोड़ा देना भी चाहिए को एसिमुलेट। उसने कहा बेटा चाहे संडे है, चाहे मंडे है, चाहे होली है, चाहे दिवाली है, हर दिन आधा घंटा तूने जो मैंने काम किया ये करना ही करना है। तो दिस इज द लेसन आई थिंक लर्न फ्रॉम हिम। एंड 3 महीने बाद जब मैं एग्जाम हुआ, आई पास फोर्थ। अब कैसे मुझे पता नहीं, बट आई पास फोर्थ। और पर जो हैबिट उसने बताई थी कि रोज 15 मिनट पढ़ना ही पढ़ना, दैट कंटिन्यूड विद मी टिल फोर्थ पूरा।
छुट्टी हो, कुछ हो, दिवाली, होली, शादी किसी की, और 5th में आई वाज इन द टॉप ब्रैकेट, पहले 3-4 बच्चों में मेरा नाम आ गया, एंड दैट कंटिन्यू आई थिंक टिल द टाइम आई रिमेन द, है ना। ये अजीब सी कहानी है कि सीधा चौथी में ही, अभी भी कई बार बच्चे बोलते हैं कि डैडी आपकी अंग्रेजी थोड़ी पुअर है, तो मैं उनको बताता हूँ, बच्चा मैंने तो ना LKG पढ़ी है ना UKG, मैं तो सीधा 4th में आया हूँ, और उस जमाने जबकि 6th में अंग्रेजी शुरू होती थी। सो दिस इज हाउ, बट फ्रॉम ए सिंपल फैमिली, जेंटल फैमिली, हार्ड वर्किंग फैमिली। फादर जो थे वो, उनका एक ही था कि काम मेहनत करनी है, तो ये इनका काफी एक रहता था कि मेहनत करो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। एंड सोशल सर्विस, ही वाज सोशल सर्वेंट प्राइमरीली। मैं देखता था हर संडे को घर में हमारे भीड़ होती थी, 8-10 लोग, उन्होंने फाइलें घर में ही खोली, किसी की ट्रांसफर, किसी की पोस्टिंग, तो मैं हम पूछते थे भाई हमें भी थोड़ा टाइम शाइम दो, बट यू आर सो पॉपुलर एंड सोशल वर्क, इट इज नॉट कि ऑफिस का काम भी घर में, बट इज डेडिकेशन पार्ट वी जस्ट लर्न फ्रॉम फादर, एंड हार्ड वर्क एंड सोशल वर्क, आई थिंक दैट कंटिन्यू टिल, स्टिल कंटिन्यूइंग। दिस इज हाउ आई थिंक स्टार्टेड ऑफ विद स्ट्रेंज स्कूलिंग। कैसे बहुत लगी आपको बहुत वैसे? बहुत इंटरेस्टिंग सर। मुझे भी अपने बचपन का याद आया कि हम, मेरी भी गांव से स्टार्ट हुआ था सर, महानपुर करके है बसोली डिस्ट्रिक्ट का, अच्छा। इसमें तहसील में। तो वहां से ट्रांसफर हो गई थी पेरेंट्स की महानपुर से बसोली, तो मैं सेकंड में था तब। तो वो फिर सेकंड और थर्ड का मेरा इकट्ठा एग्जाम हुआ था, और मैं भी बसोली में 4th में एंटर हुआ था। तो बस तो वो हमारा, मैंने, हमारी हाँ, लाइफ इकट्ठी है। तो मुझे याद आ गया कि 4th मैंने भी फर्स्ट से सीधा सेकंड थर्ड का एग्जाम देके 4th सीधा में। वो तो ये मेरे साथ भी हुआ है। उन दिनों तो बड़ा कॉमन था, इतना ज्यादा कोई ज्यादा था नहीं, कुछ रूल्स रहे, आई एम टॉकिंग ऑफ 50s की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए सब, आई थिंक दैट वाज द नॉर्म दैट टाइम। ये फिर याद रहती है ये चीजें ना बचपन की हाँ, सर। करेक्ट 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 करेक्ट, ये तो है। बहुत 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 अच्छा सर, कि जो वैल्यूज थी जो आज आज अपने फादर की सर आज भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल। कि वो फॉर्मेटिव ईयर्स का मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट रहता है, जो हमने बचपन में देखी होती है चीजें, और वही इम्बाइब करते हैं हम, पर बिल्कुल इम्बाइब ठीक करते है, हैं और वो। आपने सही बोला। जैसे फादर हमारे जैसे एवरेज फैमिली के थे, पर फादर का ये था कि एक्स्ट्रा काम भी करना चाहिए टू अर्न मनी। सोशल वर्क उनका रहता था शाम का टाइम, सुबह का टाइम ही यूज टू गेट अप एट 4 o'clock, 4 बजे सुबह उठ के, और ट्यूशन पढ़ाने जाना। जैसे हमारे शेख है ना, शिव कुमार शर्मा संतूर, वो ठीक। भी हमारे एक मोहल्ले में ही रहते थे, उनकी बड़ी सिस्टर जो थी, काफी बड़ी थी, तो उसको भी वो ही पढ़ाते थे। तो वो जो इनकम उससे आती थी ट्यूशन से, वो सुबह की इनकम है। बिफोर, जम्मू में 10 बजे ऑफिस शुरू होते हैं, तो सुबह 4 से लेकर 6-7 तक ट्यूशनें पढ़ानी, इनकम जो आती थी तो काफी हो जाती, एक तो गवर्नमेंट की पे, और जब श्रीनगर ये जाते थे तो मैं भी उनके पास गया, तो पूरी पे घर में भेजते थे वो, क्योंकि इनकम जो उधर से आती है ट्यूशन से, उससे उनका वहां का रहने वहने का, खाने पीने का खर्चा। तो ही ओनली टोल्ड कि भाई हार्ड वर्क करते रहो, आप यू विल बी कंफर्टेबल थ्रू आउट लाइफ, वो आपको कम, तो दैट इज व्हाट आई थिंक आई लर्न फ्रॉम हिम, दैट इज अ ग्रेट थिंग। नहीं सर, वो लगता भी है, बिकॉज सर आई क्लोजली फॉलो यू, क्योंकि जिस तरीके से सर आपके अंदर स्पेशली फॉर कल्चर एंड हेल्पिंग अदर्स, तो आई थिंक सर वो बहुत ही द एनर्जी लेवल फॉर हेल्पिंग अदर्स एंड हेल्पिंग द कल्चर, वो सर मेरे ख्याल से वहीं से इनकलकेट हुआ है। बिल्कुल बिकॉज सही, करेक्ट करेक्ट उन्होंने, जैसे करेक्ट। आपने घर में देखा कि फाइलें अगर वो देख रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं सेल्फलेसली, तो वो सर इम्पोर्टेंट है। या सर इसके बाद सर हम एकेडमिक का हो गया सर, एंड देन यू हैव डन इंजीनियरिंग एंड दैट टू फ्रॉम द प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ, करेक्ट। रादर JNK का, इंडिया का, दैट्स अ प्रेस्टिजियस कॉलेज। सर डिस्पाइट योर डीप एकेडमिक बैकग्राउंड, यू चोज द आर्मी ओवर कन्वेंशनल इंजीनियरिंग पाथ, क्योंकि हमने देखा है सर NIT से करने के बाद डाइवर्स फील्ड में लोग चले जाते हैं, वहाँ का इंटेलेक्ट इतना हाई है कि उधर से निकलने के बाद कहीं भी इंजीनियरिंग के लिए चले जाएं, दे कैन वर्क एनीवेयर। सर व्हाट इंस्पायर्ड योर डिसीजन टू जॉइन आर्मी? was it patriotism, was it adventure, or something more personal you want to share today, sir? Actually, in the engineering college, normally there is always a race for the companies. Which company pays you more, where to go abroad into Germany. These are the things, especially in, that was the only engineering college in JNK. So regional engineering college was the norm that time, जी। with 50% students from JNK and 50% from all over the country. 30% from North India, 20%. So it was a
and then race was there to join a company. But wherever I find all the Dogra students who are from Jammu region, so यहाँ तो there was a craze for joining army. आर्मी सिपाही की वर्दी देखते हैं, अफसर की वर्दी देखते हैं, they used to feel very happy. और smartness, they're very very smart. There is a way of their speaking, conducting, और अच्छा लगता था बड़ा. तो ये हमारे ब्रेन में था ही था, मतलब कि आर्मी मतलब कुछ ऐसे. दूसरा उन दिनों जो हमारे ग्रुप्स बने थे स्कूलों में ही, स्कूल या कॉलेज में भी ग्रुप्स, उसमें ज्यादा कहानियां यही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवाजी, उन सारे ग्रुप्स में यही कहानियां जो चलती थी, ये आपको एक इंस्पायर करती थी टुवर्ड्स, आई थिंक, टुवर्ड्स नेशनलिज्म. तो ये एक अच्छा रहा. और नेशनल क्रेज जो थी, तो इसलिए जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से हमारा प्री फाइनल था, तो बाकी कंपनीज में अपीयर होते थे, और जम्मू के स्टूडेंट दे यूज्ड टू अपीयर इन इंटरव्यूज इन जने ये इसके लिए इंटरव्यूज इन फॉर द आर्मी. मुझे याद है कि हमारे ही बैच में से अबाउट 7-8 एट वन टाइम एट IMA व्हेन वेयर आई डिड माय ट्रेनिंग, आर्मी की ज्वाइन कर, आर्मी की तब इनिशियल ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है. So there, when I joined, we were 8 from the engineering college. Out of, let us say, out of 110 technical students, 8 were from Jammu Kashmir Engineering College. Just imagine. So it was a natural craze. As far as the nationalism is concerned, that time generally we do not have much idea about nationalism. It was only Josh. चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे आजाद कराया था, भगत सिंह ने कराया था, शिवाजी कैसे लड़े थे, है ना. या हमारे ये भी कहानी है महाराज गुलाब सिंह की आती है, जोरावर सिंह की कहानी, कैसे वो तिब्बत तक पहुंच गए, लड़ते लड़ते, छोटा सा एरिया था, बहुत बड़ा बना दिया. तो दे यूज्ड टू से कि अस, जैसे डोगरी में बोलते हैं ना, अस डोगरे आखने शाना कने अहें जंगा जितियन कमसाना कने. तो वो एक माइंड में शुरू से ही था. And I think this is the only thing. There's not much of patriotism, primarily the Josh at that time, and whatever was the craze in Jammu during those days. आजकल भी craze तो है ही है. I find जब काफी रश हो जाता है, जब इंटरव्यूज होते हैं, तो and so many people appear for the interview. That was, I think, was the main thing which attracted me towards the army. Select भी हो गए, luckily. क्यों ऐसा नहीं है कि everybody gets selected. काफी tough competition है. और मेरे साथ जम्मू के और भी थे, तो नॉट एवरीबडी गॉट, बट 8 गॉट सिलेक्टेड वाज अ बिग नंबर. दैट मींस यहाँ के लोग शायद दे हैव गॉट दैट थिंग इन देम कि पूरा इंटरव्यू, और SSB में 5 दिन का होता है इंटरव्यू क्लियर करना, अपना जो ग्राउंड टेस्ट सारे क्लियर करने. 2 दिन हो तो ग्राउंड टेस्ट चलते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट चलता है, 5 दिन का इंटरव्यू. वी ऑल, एंड 8 लोगों ने क्लियर किया. दैट इज वेरी ह्यूज परसेंटेज. 10% या 8-10% इंडिया में से सिर्फ कश्मीर के, हमारे जम्मू कश्मीर के थे उस कॉलेज के टेक्निकल. सो आई थिंक दैट वाज द थिंग व्हिच आई फील मेड अस बहुत अमेजिंग. आई थिंक बहुत ही अमेजिंग सर, आई थिंक जर्नी रही. सर इसी के साथ जुड़ता है एक, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस आर्मी का एंड उस टाइम पे जोश और क्रेज. सर हमारे कई जो व्यूअर्स रहते हैं तवी टेल्स के, दे आर यूथ, और वो यूथ जो है इंस्पिरेशन लेते हैं सर आपके जैसे इस्टीम लोगों से सर, हु हैव क्रिएटेड ए मार्क इन सोसाइटी बाय वर्किंग इन ए वेरी वेरी सीनियर पोजीशंस इन आर्मी और रेस्ट ऑफ द प्रोफेशंस. प्लस उसके बाद भी दे आर पेइंग बैक टू सोसाइटी विद फुल विगर. सर एक तो आपने आर्मी का बता दिया कि इट वाज ए क्रेज और बहुत अच्छा लगा. सर एक फीलिंग जो आपको मैं पूछना चाहता हूँ सर, कि जैसे आपने IMA में गए, उसके बाद एज पर माई अंडरस्टैंडिंग अंतिम पग जहां से यू हैव क्रॉस्ड, एंड जब आपको स्टार्स लगते हैं देन यू बिकम ऑफिसर फ्रॉम कैडेट. सर वो फीलिंग, हाउ वाज दैट फीलिंग सर, अगर आप उसको बयान कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल मोटिवेट लॉट ऑफ यूथ टू ज्वाइन आर्मी. की जब ऑलिव ग्रीन पहने और स्टार लगा रहे हैं पेरेंट्स, हाउ यू फील एट दैट पॉइंट इन टाइम सर, अगर वो फीलिंग आप शेयर कर सके, which would be, I am sure, etched in your memory forever. वो तो एक बहुत ही बड़ी ग्रेट फीलिंग है, क्योंकि उन दिनों एक स्टार पहले लगता था. सेकंड लेफ्टिनेंट वाज द नेम. आई बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वी यूज्ड टू गेट 2 years NTT. दैट मींस रात को आपको 1 स्टार लगा, सेकंड इन द मॉर्निंग यू हैव 2 stars लेफ्टिनेंट. अभी थोड़ा चेंज हो गया सिस्टम, आजकल सीधा लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है, और पहले 1 स्टार से. But suddenly, when you are, let us say, doing training, you are not an officer. आप सिंपल वर्दी में हो, इधर स्ट्राइप्स तो लगे रहते हैं, और काफी रगड़ा होता है उसमें. आपकी फिजिकल फिटनेस को एक समझो जो तराशा जाता है ना, कि आप डायमंड बनाते हो तो काफी तराशते हो,
कोई भी वहां पर आ जाए, उसको जो 1 साल की जो त्राशना है इज टू टू गुड। और एक आप में कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग अप, योर फिजिकल फिटनेस एंड इंटेलेक्ट पार्ट इज ऑल्सो। हमारे सो मेनी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, our military history, military geography, English, all those subjects are there. But we have to get up early in the morning at 5 o'clock. Everything starts at 5 o'clock, 5 to 6 drill, PT, the physical fitness. Then our classes up to some time. Then evenings, all games and everything. So the moment you wear the uniform, you are totally different. You are not a student then. You suddenly feel from a student you have become an officer. And officer means very big. And I remember when I became an officer and went to my first unit, I was just about 22 years old that time, 22 or 23-year-old. And there were 40 people under me. It was a light repair workshop because I was a technical man. A Subedar was heading that, and there was another one Subedar, 40, means Havaldar, Naik, Sipais. And suddenly you are very big. And even Subedar, when he used to call me, and suppose somebody's teeing out is here, some Sipai is going from my 40 people team on posting. So you have a teeing out, you have a dining out. So Subedar used to give lecture. He used to say, "Yes, sab hamare mai baap hain." I used to feel very ashamed that time. I am just equivalent to her, probably daughter or so. But I'm just saying the value that you get is fantastic, and that I think that pushes you to do better and better because you are already at a very elated form. And I think as an officer, you are at a very very higher platform. तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और वो हम जब कंटिन्यू करते हैं तो जोश आता है। हमारी ट्रेनिंग ऐसे है, हम ट्रुप्स के साथ रहते हैं। अगर एक सिपाही है, वी डोंट कंसिडर कि जैसे मैं सिविल में आम देखता हूँ कि कभी ना 17 ईयर यहाँ हो गए, तो वहां रहता है एक अफसर है, एक नीचे है, एक हेड क्लर्क भी होगा। ही विल स्पीक रूडली विद पियन। मैं देखता हूँ हेड क्लर्क के पास गया था तो हिंदी में मैं तो पूछा, भाई कोई फाइल थी सेक्रेटरीट में। सेक्रेटरी ने बोला, यार हेड क्लर्क के पास है, हमारी तो मीटिंग चल रही है, ले लो। तो आई वेंट टू सेक्रेटरी, तो इवन द डोगरा मैन, बट पीएन के साथ वो पीएन में और डोगरे सारे। तो उसको, अच्छा भाई साहब को फाइल चाहिए, वो फाइल निकाल के दो। आई आस्क्ड द हेड क्लर्क कि आप कहाँ से हो? ही टोल्ड, आई एम दिस मोहल्ला ऑफ जम्मू सिटी एंड यू स्पीक डोगरी? यस। मैंने कहा, उनके साथ आपने डोगरी क्यों नहीं बोली? कहते मैं पीएन के साथ डोगरी बोलूंगा तो मैं ही पीएन हो जाऊंगा। जस्ट इमेजिन कि आप अपनी लैंग्वेज पीएन के साथ बोलो तो दैट मीन ऐसा हमारा साइक। आर्मी में ऐसा नहीं है, अफसर भी है, वर्क्स विद द जवान, वी कॉल इट बडी, हमारा साथ रहता है। क्योंकि वार में हम जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं। आप यू सी, जवान तो अफसर के लिए लाइफ दे देता है, एंड अफसर भी जवान। तो वो जो एक फीलिंग है ना आर्मी की, दैट आई थिंक इज वेरी वेरी ग्रेट। वो हम कभी भूलते नहीं और याद रहता है, एंड दैट कीप्स अस थ्रू एंड डू बेटर एंड बेटर। इंडियन आर्मी में जर्नी की अब बात करते हैं, तो आपने बहुत से सर हाई स्टेक्स जोन्स, जैसे मणिपुर हो गया, कारगिल हो गया, लेह हो गया, श्रीलंका, ऐसे जोन्स में सर आपने काम किया है। और ये ऐसी जगह हैं दैट टेस्ट योर नॉट जस्ट टेक्निकल स्किल्स बट योर इनर स्ट्रेंथ आल्सो। तो सर कोई ऐसी स्टोरी इस दौरान इन जोन्स में काम करते हुए जिसने what that has left indelible mark on you as a leader and as a human being? If that is a thing, मुझे याद आती है एक श्रीलंका की बात। When we went, Indian Army went for peacekeeping force, LTT के अगेंस्ट हम गए थे, तो conditions were very tough. I was that time in Nagaland, मणिपुर नागालैंड 2 साल बिताए थे वहाँ काउंटर इंसर्जेंसी में। एंड द होल ब्रिगेड मीन जिसके नीचे 3 इन्फेंट्री बटालियन होती है, हजार आदमी की, एंड ब्रिगेड हेडक्वार्टर, और मैं भी ब्रिगेड के साथ ही था। वी मूव टू श्रीलंका। श्रीलंका में किलिनोची इज द प्लेस, स्मॉल टाउन है, वहां पर हम रहे टाउन में। तो जो इन्फेंट्री बटालियन होती है, इन्फेंट्री, क्योंकि हमारे रोल्स अलग अलग है आर्मी में भी, इन्फेंट्री कॉम्बैट कर सकती है सीधा एनिमी के साथ 1-to-1, है ना, राइफल्स हैं, साथ में लड़ना। उनके पास सपोर्टिंग आर्म्स रहती हैं, आर्टिलरी है, गोले मारने, तो टैंक्स हैं, टैंक्स में बीच में बैठ के लड़ाई करनी। देयर आर सर्विसेज ऑल्सो, जैसे आई एम फ्रॉम सर्विसेज साइड, दैट मीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सर्विसेज सप्लाई से है, कोई खाना पीना पहुँचाना है, कोई क्लोथिंग देता है हमें, ऑर्डिनेंस, मेडिकल वाला। हम सारे के रोल अलग अलग हैं आर्मी में। और जब वहाँ पर किलिनोची में थे तो हमारी जो इन्फेंट्री बटालियन, तो उन्होंने आगे भेजी थी जहाँ जहाँ कंट्रोल करना था, जैसे हम कहते हैं फील्ड एरिया में।
तो किलिनोचे का जो फील्ड एरिया था, जहाँ टफ एरिया था, वहाँ इन्फेंट्री बटालियन भी। तो किलिनोचे टाउन में रह गया हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर में कौन रहता है? आपके कुछ समझो ऑफिसर तो हैं, थोड़े से क्लर्क हो गए, क्लरिकल स्टाफ, फौजी है सारा, पर सर्विसेज सारी, रिपेयर एजेंसीज वहाँ, सप्लाई वाले वहाँ, मेडिकल वाले सारे वहाँ वहाँ। अभी उसको भी कंट्रोल करना पूरे सिटी को, किलिनोची को, ताकि वहाँ एलटीटी आगे गड़बड़ ना कर दे, हमें ही ना मारे, सिटी को सेव करना है। तो एवरी डे देयर इज अ सिस्टम कि पेट्रोल भेजते हैं सिटी में, पेट्रोलिंग पार्टी को, जिसमें 15-20 लोग होते हैं, पूरा एक डोमिनेशन ऑफ द सिटी, ताकि पता रहे सिटी अपने कंट्रोल में रहे, कोई आके एलटीटी वाले ना आ जाए बीच में। तो अभी आप अंदाजा लगाओ कि काम इन्फेंट्री का है, हमने रोल इज देयर रोल, हमारा रोल बेसिकली रिपेयर सर्विसेज का है, बट वहां आप जब आ जाते हो तो आपको भी निभाना पड़ता है। तो एक बार मेरी ड्यूटी भी लगी, सभी की लगती थी, ऑफिसर, आई एम फ्रॉम सर्विसेज। अब पेट्रोलिंग का मेरा नॉलेज थोड़ा कम है, इट इज टॉट टू इन्फेंट्री इन डिटेल्स। तो मैंने क्या किया, जैसे मेरी ड्यूटी समझो 8 तारीख को है, 8 तारीख को आप पूरा ड्यूटी शीट आती थी, 8 तारीख को मैंने जाना है, पेट्रोल करना है एंड डोमिनेट द कंप्लीट सिटी। अब आई न्यू माई नॉलेज इज लेस, तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो पेट्रोलिंग में एक इन्फेंट्री अफसर जा रहा था, हेडक्वार्टर में इन्फेंट्री के भी कुछ अफसर रहते हैं थोड़े से, ही वॉज ए लेफ्टिनेंट, आई वॉज ए सीनियर मेजर दैट टाइम, तो उसका नाम भी लंका था लड़के का। तो मैंने कहा भाई लंका, तेरी बारी तो कब है? कहता सर मेरी बारी तो इस दिन है, 6 को है। मैंने कहा आई विल गो अलोंग विद यू। कहता सर वेरी गुड, you take the patrol and I will be there as a second in command to IC. No, 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 no. You will be the commander of the patrol. I will not wear my ranks. I will be with the troops जो आपके साथ 15-20 होते हैं. I just want to learn तुम करते क्या, पूरे एक एक डिटेल. And once you go for patrolling, do not go for 1 hour. Make it 2, 3, 4 hours. Whatever you do, I just want to learn. I will be part of you. तो मैं उसके साथ गया उस दिन, इंस्टेड ऑफ 1 hour पेट्रोलिंग, उसने डोमिनेशन 2-2.5 घंटे लगा दिए। किसी की चेकिंग करनी, कोई साइकिल पे आ रहा है, बैग है, बैग चेक करना, किसी के घर में जाना, कैसे कंडक्ट करना अपने आप को, है ना, कोई 4 आदमी आ रहे हैं उनको कैसे करना, कहाँ, तो वट एवर इन्फेंट्री तरीका है, आई लर्नड। एंड थर्ड डे जब मेरी बारी आई तो मेरे साथ भी 15 लोग हैं, 15-20। तो आई डिसाइडेड, तो आई टोल्ड माई ट्रूप जो 15 थे, बिकॉज आई वाज द वन सीनियर, तो मैंने कहा ऐसे है कि मैं पेट्रोल कमांडर हूँ, तो आज हम ये रूट पकड़ेंगे। सम रूट होते थे एवरी डे। तो एक सूबेदार कहने लगा कि सर ये रूट मत पकड़ना, ये बड़ा डेंजरस रूट है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते इधर तो 15 आदमी की डेथ हुई थी जस्ट अबाउट 2-3 months बैक, द डेंजरस रूट। तो आई टोल्ड माई, अच्छा दूसरा एक कॉन्फिडेंस कम होता है ना, कि दे नो कि आई डू नॉट डू पेट्रोलिंग, मैं तो थोड़ी देर के लिए बना हूँ पेट्रोल, थोड़ा सा चक्कर लगा के, है ना, नॉट माई रोल। तो मैंने उनको बताया सूबेदार साहब को, डोंट वरी, मैंने कहा जब पेट्रोल जाएंगे 15 आदमी, मुझे सारा पता है, आगे हमारा एक स्काउट रहता है, उसके 10 मीटर के पीछे दूसरा स्काउट रहता है, राइफल के हथियार स्काउट्स, पेट्रोल की टीम में पहला बंदा इसका फर्स्ट स्काउट, दूसरा स्काउट, इससे नॉर्मली जो रहता है, जो सूबेदार रहता है या पेट्रोल कमांडर रहता है, उसके पीछे टीम रहती है, कोई ग्रेनेड किसी के पास, किसी का लाइट मशीन गन है। तो आई टोल्ड आई विल बी द थर्ड मैन, मेरे आगे 2 स्काउट्स होंगे, आई विल बी द थर्ड मैन, एंड सूबेदार साहब यू विल बी इन द एंड टीम, ताकि आप कंट्रोल करते करते आओ, और गैप रहता है सभी में, ताकि अटैक हो तो ये नहीं कि सभी कैजुअलिटी हो। एंड आई कंडक्टेड द होल थिंग। एंड व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो चीज हम एक, है ना, इन्फेंट्री का रोल भी आई डिडंट नो मच, लेकिन जब जरूरत पड़े कि मुझे बताया है, और हम सीखा है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सीखा, IMA में सारा बताते हैं, लेकिन जब आपकी 10-12-15 साल सर्विस एक डिफरेंट एरिया में रहती है, माई रोल में, मेरा रोल था बेसिकली राइफल्स, टैंक्स, गन्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, सबको फिट रखना, ऑपरेशनली फिट ऑल द टाइम। तो वो मैं उस रोल में था, पेट्रोलिंग के रोल में था नहीं। पर जब ये जरूरत पड़ी, बट 2 दिन पहले मैंने पूरा रिवीजन किया एक यंगस्टर के नीचे, आई वाज अंडर हिम। तो ये जो एक बड़ी, जो आप कहते हैं ना, टैक्टिकली सब सीखा है, और इनर सेंस यही है कि वट एवर यू डू नॉट नो, लर्न इट। जैसे मुझे पता है वेयर एवर यू आर वीक, मैं कहता हूँ मैंने IMA में पढ़ा है कि कैसे जाते हैं पेट्रोल, मैं भी करूंगा, मुझे लगा नहीं, मेरा नॉलेज थोड़ा सा पुराना हो गया, अभी चीजें बदलती हैं, ये नया लेफ्टिनेंट आया, ही नोज लेटेस्ट। तो ये जो है ना, ये आपको इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे, दिस इज हाउ वी कंटिन्यू थ्रू आउट इन आवर लाइफ। अच्छा रहा ये एक इंसिडेंट व्हिच आई थॉट आई मस्ट कोट, क्योंकि व्हिच टेल्स की वी मस्ट कीप लर्निंग। अगर नहीं भी आता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, यू कैन डू एवरीथिंग, बट यू कैन, इफ यू लर्न, यू विल बी probably at a better place.
है ना। बहुत ही सर एक इम्पोर्टेंट लेसन बताया आपने कि जो चीज नहीं आती वो सीखिए या उसको स्ट्रेंथन कीजिए। और एक एक ह्यूमिलिटी, और इसमें कोई ईगो नहीं आना चाहिए। जैसे आपने अपने लोअर रैंक के ऑफिसर्स दिखा, मुझे भी याद है अपने हमारे मेडिकल करियर में सर, सर्जिकल फील्ड है मेरी, मैं ऑर्थोपेडिक्स में हूँ, तो करेक्ट। सर्जरीज इवॉल्व इवॉल्व होती रहती हैं सर, नई सर्जरीज। तो हम्म। एक हिप फ्रैक्चर की सर्जरी थी, तो मैं मेडिकल कॉलेज शिमला में मैं रजिस्ट्रार या सीनियर रेजिडेंट था। तो हमारे डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, वो हम उनको भी पढ़ाते हैं उस समय, ओके। जब वो एमएस करते हैं। तो हम्म। हमारा थोड़ा लिमिटेड रोल होता है, मतलब इमरजेंसी में हमारे ही सुपरविजन में वो सीखते हैं। तो वही एक एमएस का स्टूडेंट था। तो जब मैं दूसरी बार हिमाचल गया मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में, तो वो सीनियर रेजिडेंट थे तब वहां पे। तो मैं वहां मैंने ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन एक हिप फ्रैक्चर की ऐसी सर्जरी थी जो ना शिमला में होती थी ना वो जम्मू में उस तरीके से होती थी, लेकिन वहां पे करते थे कांगड़ा में। तो ओके। मैंने उसको वो तब सीनियर रेजिडेंट पीजी स्टूडेंट थे हमारे, तो मैंने बोला मैं यार ये मुझे आपसे सीखनी है। हम्म। तो वही यही चीज जो आपने बोली वेरी गुड। करेक्ट करेक्ट। जाके सीखी, तो मैंने वो वाली सर्जरी उनसे हाँ सीखी। यार। पहले उन्होंने मुझे पूरा बताया, पहले मैंने असिस्ट किया उनको, फिर उन्होंने मुझे असिस्ट करवाया। फिर मैंने उनको बोला कि मैं करूंगा, आप सिर्फ खड़े रहिए। तो फिर अच्छा मैंने अच्छा। खड़े की। तो वो टेक्निक वो तब से सीखी हुई आज वन ऑफ द कॉमनेस्ट सर्जरीज में यहाँ कर रहा हूँ। तो ओ ये राम। मैंने अपने जूनियर से सीखी। तो वहां वही है कि अगर आपको कुछ सीखना है, तो चाहे आपके रैंक से नीचे है कोई या हाँ वो करेक्ट। हमारे स्टूडेंट ही थे, तो मुझे लगता है उसमें कोई शर्म की बात नहीं। और आई आई प्राउडली टेल एवरीवन कि ये मैंने अपने जूनियर से सीखी है। जैसे मैं भी और बता रहा हूँ कि मैं काफी सीनियर मेजर हूँ और मैं लेफ्टिनेंट के नीचे, मैंने कहा नहीं, आई टोल्ड हिम, आई ऑर्डर हिम एक्चुअली, अदरवाइज मान नहीं रहा था। मैंने नहीं, यू विल बी द कमांडर, आई विल बी वन ऑफ द ट्रूप्स, क्योंकि मैंने सीखना था एक्चुअली। तो सीखने के लिए आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। नंबर दैट यस टू सर, फॉरगेट द रैंक एंड कि आप सीनियर और जूनियर, नो। जो बिल्कुल ज्यादा जानता है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट इंडिविजुअल, बिल्कुल है सर, ना। बिल्कुल। बहुत 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 अच्छा सर लेसन है ये सर, सो हम नाइस, सबके सो लिए। नाइस। नहीं सर, बहुत बढ़िया लेसन जो आपने भी दिया और डॉक्टर विकास ने भी सेम एक्सपीरियंस शेयर किया। इट टॉक्स अबाउट, आई थिंक कहीं ना कहीं सर ये डोगरा कल्चर भी है कि डोगरे जहां पर भी अगर आप बुक भी पढ़ते हैं विच इज रिटन ऑन डोगरा सोल्जर्स, दे ऑलवेज से दे आर वेरी सिंपल, दे आर फास्ट लर्नर्स एंड दे हैव जीरो ईगो व्हेन इट्स अ मैटर ऑफ लर्निंग। आई करेक्ट थिंक करेक्ट। ये कहीं ना कहीं सर ये आप दोनों की स्टोरी से सर काफी हद तक दिखता भी है, और यूथ के लिए स्पेशली कि लर्निंग के लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़े, आई थिंक यू कैन कीप both these instances in your mind and then the path will be clear for you. वेरी Sir, now, नाइस। sir, now coming back from, Manipur, Kargil and Sri Lanka post-retirement, sir. ओके। So even though, sir, you retired from the position which is the top of the pyramid, when there are very few people are accommodated due to their performances, you are one of them. Proud Dogra, who retired as a Major General and also received a Ati Vishishta Seva Medal. Sir, post-retirement, you moved into academics and writing, and आप principal रहे MIT में, and sir, you have authored books also, and I am lucky enough that I've spent some time and seen those books. For the viewers, very very high quality books. जब सर बताएंगे why, what was the genesis of those books that guide students for planning their careers, whether it's local and global careers. Sir, इस path में what led you to this particular path, and what do you think that youth need today the most? Is it information or inspiration? Youth ऐसा को कि किस चीज की जरूरत? जी जी। हाँ, वंस आई रिटायर्ड, तो ऑप्शन ये था, कुछ ना कुछ ऐसे लगता था, वेरी यंग, तो आई वाज 58 इयर्स दैट टाइम, लगता था मैं घर कैसे बैठूंगा। Sir, आई you are वाज still very, ट्विस्टिंग। sir, I'm just cutting you. You are still very, very young. And सो I have seen you. It's very, नाइस, very सो नाइस, difficult whenever we walk with you. Sir, you सो are नाइस। the youngest among all the people अरे सो I have सो met. नाइस, सो नाइस। जी So सर। this was the thing I thought ki, how can I sit home? My only aim was to do social work primarily. I went to, when I retired, I went to Vridashram, I went to Andhra Vidyalaya, then orphanage also. I thought I devote my time there because probably my psych was that time, only do social work. But once I went in all these houses in Jammu, I found ki, they are being well run. Whosoever were running it, beautifully run.
and I can come as an advisor, you know. But the total time requirement is just 1 hour in a week or something like that. In the meantime, this offer came. My co-brother, who was a professor, he said, "Why don't you join education?" So I said, "I don't know much of education, though I have done all with my three post-graduation, etc." But he said, "Just come and model. There is a college called MITE. We'll just go to the chairman. We'll ask if there is something." So we went. Dr. Arun Gupta was there, and he was chairman. No, he's no more. He was there, and he said, General Saab has retired, and how about taking him in your outfit? He said, yes, he can join because we are looking for a principal's post, and he can join in a principal. And the way he spoke to me, and his wife, Renu Gupta, no, she's the chairman of the Meyer Group of Institutions, they made me very homely. As I was feeling, I am not talking to a stranger. I am talking to somebody whom I know is a brotherly, you know, does that. And I said, okay, you say I'll join that. So that is how straight away I came in. When I came in, but still I thought I had in my double-minded. There I was dealing with the trained soldiers, maybe 100, 200,000, 7,000 was the maximum at one time to be. And here it's a student, they are just about 18 years, 19, 20. Probably I may not be mismatched. And then you feel it also at that rank, you are dealing with students and you may be mismatched. But I think, okay, I'll see for 15 days or months time. And if I find I'm unfit, I'll just come out. But once I went to the college, my habit is not to sit in the office. I go to each class, sit with the students, and I found the placement level was very low. Students are they're doing engineering. It was primarily an engineering college, and the placement is very less. And wherever I have met Jammuites outside, I have been moving to all over the world and all over the countries and within the country. Jammu people were doing very well. But here, what is happening? I must do something. I think that is the motivation. I got stuck with the MITE, and 17 years have passed, so that the placement is better, those things. Then I found when I used to talk to them, I found what are the drawbacks in Jammu students, because they're all coming after 12th. There have to be some drawbacks. That is why there are no placement. So then I studied what were the drawbacks. Then I wrote a small book on that. Firstly, I was giving articles in newspaper, then so wrote a small book. That book, I think I can show you if it is somewhere here. Yeah, this is the book. It is named as Career Planning for 12th. I don't know whether you can read it or not. Yes, we can. I wrote it only for Jammu students. I did research, quite a bit of research, made 500 copies, got it published in Jammu, made 500 copies, and distributed in schools. I went to the schools, starting with DBN, starting with Sanatan Dharam Sabha High Secondary School, a Sainik School here, and whatever copies were left, I just got few of the envelope, उसमें लिखा केंद्रीय विद्यालय अखनूर, केंद्रीय विद्यालय रजौरी, and sent it to there. Here I have put ki if after 12 you want to join engineering, medical, commerce. So this was written just about, I think, 15 years back. So this was the first book which I wrote. Now it may be obsolete. So old a book. So that is how I started off with book writing. And then by staying in the college engineering, because I'm also primarily in engineering, I started teaching also. And our way of teaching is totally different than the contemporary teachers here. Because those teachers are probably did their in BTech, MTech, and they're teachers. I had done my factory tenures, done my army tenure, and practical things. The teaching part was more practical. So when I started teaching, the result of the subject, I remember it came 100%, which used to be 30, 40 in the last 3-4 years. And so then that is how I think I got in this teaching line and got stuck there. Book writing, you said, when the Corona came, 2020, I remember 22nd of March, we sat in the house, no college, nothing. But I have got quite a bit of knowledge about the careers. So this book was only for J&K. It was written J&K special. Then I wrote a book for international level. Its name is Trending Careers. It's in the Amazon. It's available now. And every second day, this book is being sold. Every second day. And I think about 50 libraries have purchased this book, and more than, I think, 1,500 copies have been sold. I'm not doing anything. I just get an intimation that copies have been sold. So then I guided a book for the children. Jammu students, they are in school, but they search the problem with the society, 5-10 problems. How to solve those using small item called Arduino. આજકાલ there is an adult tinkering lab. There is a small electronic board called Arduino.
उससे अब यू कैन सॉल्व एनीथिंग, गिव ए इनपुट, इट गिव्स आउटपुट। तो 8 प्रॉब्लम लेके, दिस अगेन द इंटरनेट, आई थिंक ब्यूटीफुल बुक रिटन बाय द जम्मू स्टूडेंट्स ऑफ 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, एंड द एल्डेस्ट गर्ल वर 12th हु वाज डूइंग ऑर्डिनो। लास्ट बुक जो मैंने लिखी है डोगरा के ऊपर, कि 2-3 साल पहले डोगरा का काफी आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड आई थिंक आई हैव बीन वर्किंग क्वाइट अ बिट। अभी भी हम डोगरा ऑर्गेनाइजेशन में थे। लास्ट बुक इज अ डोगरा कल्चर, इट इज ऑन द डोगरा कल्चर बेसिस। आई थिंक ये भी अभी काफी, मुझे ये जो बुक है, दिस इज द लेटली बुक आई हैव रिटन, जस्ट लास्ट वीक रिलीज हुई है, बट आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई फाउंड कि इंग्लैंड में दिस बुक हैज बीन गॉन टू डोगरा पीपल, इन यूएसए इट हैज गॉन टू वेरी मेनी डोगरा पीपल, बिकॉज आई सेंट टू वन, जब मैं दूसरे को रिंग किया, कहते सर हमारे पूरे जम्मू एड ग्रुप में दिस, तो मे बी डोगरा से लाइक कि भाई हमारा कल्चर है, तो दैट इज हाउ I came in academics and stayed there. नहीं सर, बहुत ही बढ़िया सर एकेडमिक्स की जर्नी है, बिकॉज आई एम ए टेस्टिमनी टू सर व्हाट यू आर सेइंग, इवन दो आई एम इन Right. माइट फ्रॉम लास्ट near 2 years, but the spirit what Arun sir had started, Yeah. ma'am has started, Ankur ji is taking that forward. It's a actually it's a home. So I just want to tell you one yeah. thing about them, because you just mentioned about them. When I came here, I had a different opinion about private institutions, है ना, कि कैसे होते हैं, क्या करते हैं। पर मुझे याद है, ज्वाइन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और जब अगस्त महीना आया, जब बच्चे आ गए, फीस आ गई सारी, तो चेयरमैन जो अरुण गुप्ता जी थे, ही कॉल्ड मी, ही सेड ऐसा करो, ये 4 लाख लो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के इक्विपमेंट, ये 6 लाख लो इलेक्ट्रिकल लैब के इक्विपमेंट, ये 8 लाख लो लाइब्रेरी में स्ट्रेंथन लाइब्रेरी। तो मैं सोचने लगा, सारा पैसा जो आ रहा है स्टूडेंट से, ही इज पुटिंग बैक इनटू द स्टडीज। हमारा कॉन्सेप्ट कुछ और था कि पैसा आता है तो प्राइवेट में अपनी बिल्डिंगें बनती हैं, पर यहाँ बैक तो द क्वालिटी दे मेंटेन, आई थिंक स्टिल दैट इज व्हाई इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। माइट आज की डेट में बेस्ट इन जेएनके, नॉट जेएनके, वर्ल्ड रैंकिंग में आता है अभी, तो ये ब्यूटीफुल बिल्कुल सर। मेंशन किया, तो आई थॉट आई विल मेंशन अबाउट दिस। हाँ, नहीं नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेम थिंग आई ऑब्जर्व व्हेन आई ज्वाइन। सो मेरे को लगा कि पैसे आते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्या होता होगा, बट द सिमिलर आई थिंक डीएनए होगा। बिल्कुल वही मूव किया है अंकुर जी ने भी, एंड ही इज स्पेंडिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, जितना भी ज्यादा उनको बेनिफिट दे सकते हैं, टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट्स हु कैन डू प्राउडली दे कैन डू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड किए। सो आई थिंक दैट इज रियली दिस फोरम, आई थिंक we both can talk about with conviction. Yeah, It's because really I'm there one of the to, best due to the people who are running it, जो अंकुर जी, उनसे पहले उनके father who was running this institute. Over to विकास जी। बहुत ही सर इंस्पायरिंग लग रहा है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने एक सर जर्नी स्टार्ट की, देन यू वेंट टू इंडियन आर्मी और बैक टू इंजीनियरिंग कॉलेज। तो लाइफ के टर्न्स कैसे आते हैं, जहां से स्टार्ट किया वहीं आपने फिर आगे भी कंटिन्यू किया, और फिर बुक राइटिंग की ओर आए। सर एक और मैं इसके साथ आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने ब्रीफ में बात की कि एक एपिसोड सुनाया कि जब आप सेक्रेटरीट में गए और हेड क्लर्क से आपने बात की, और उसने पियन से बात की, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं डोगरी च गल करगा तो मैं पियन बन जागा। तो मुझे लगता है कि और कुछ ऐसी ही चीजें होंगी जिन्होंने आपको रियलाइज करवाया होगा कि डोगरी लैंग्वेज और डोगरी आइडेंटिटी पे काम करने की जरूरत है। तो ऐसे कौन से ऐसे और इंस्टांसेस थे जिन्होंने आपको मजबूर किया, और अब आपका वो मिशन और एक और पैशन है टू वर्क फॉर डोगरी लैंग्वेज एंड डोगरी आइडेंटिटी, जो तो वो मैं चाहूंगा आप थोड़ी डिटेल में इस चीज को शेयर करें। हाँ, मैं इसका, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो, क्योंकि अभी आई एम वर्किंग डे एंड नाइट, इसी के काम कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली आई एम पार्ट ऑफ ए सीनियर सिटीजन क्लब। नेचुरली बुजुर्ग सारे इकट्ठे होते हैं, तो हमारा क्लब है, डॉक्टर कस्तूरी लाल इज चेयरपर्सन ऑफ दैट, एंड उन्हीं का उन्होंने चलाया, तो मैंने भी ज्वाइन किया। उसमें हम नॉर्मल प्रोग्राम करते हैं कि हेल्थ कैसे ठीक रखनी है, खुश कैसे रहना है, खुद ही चांद से एक दूसरे को गाने गाने, तो ऐसे हम प्रोग्राम करते हैं वीक में एक या मंथ में एक बार हमने डोगरी के जो पर्सनैलिटीज है उनको बुलाया, डोगरा पर्सनैलिटी, जिसमें हमारे साहित्य अकेडमी अवार्ड आर्टिस्ट थे, काफी लिटरेरी आदमी डोगरी के थे। उधर जब बात की ना, तो जो कुछ सीन ऐसे सामने आया कि जो डोगरी बुक्स लिख रहे हैं, दे आर जनरेटिंग लिटरेचर फॉर डोगरा, जो डांस कर रहे हैं, जो गाने लिख रहे हैं, ये सारे कल्चर डेवलप कर रहे हैं। पर वहां एक फीलिंग ऐसे सभी ने दी कि एक को पूछा भाई कितनी किताबें हो गई, वो कहता है जी मेरी डोगरी में साहित्य के अवार्ड विनर है,
जम्मू का भी अवार्ड मिला गवर्नर का, मेरी किताबें हो गई 26। तो दूसरे ने पूछा बिकती कितनी है, डोगरी में लिखते कहता 0, कहता लिखते किसके लिए हो। तो फिर सभी जो जितने हम 20-25 डोगरा पर्सनैलिटी, 16-17 ने ये बताया कि जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे मैं नाच रहा हूँ, चाहे गाने लिख रहा हूँ, चाहे मैं ड्रामा बनाता हूँ, चाहे किताब, बेसिकली दूसरे दिन मेरी एक्सेल डेली एक्सेलशियर में फोटो आ जाती है, मुझे कुछ अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल जाता है, मुझे गवर्नर का अवार्ड मिल जाता है, कोई मतलब एक विजिबिलिटी रहती है। लेकिन कल्चर फैलाने का जो पार्ट है, ये भी कल्चर का एक पार्ट है, तो वो पार्ट मिसिंग है। ये चीज ऐसे मुझे स्ट्राइक की कि कल्चर तो जाना चाहिए, किताब तो बच्चों ने पढ़नी चाहिए, स्कूल के बच्चे, कॉलेज, वही तो तभी तो डेवलप होगा डोगरा कल्चर। देन आई वेंट टू स्कूल्स, खुद ही मैंने गाड़ी पकड़ी, स्कूल में चला गया, मैंने कहा चलो बात करें डोगरी में। एंड टू माई सरप्राइज, यही नरवाल के आस, मेरे घर के आसपास ही 3-4 स्कूल है, 3 स्कूल में गया मैं, एक मिडिल स्कूल, एक हाई स्कूल, एक हाई सेकेंडरी स्कूल। एंड टू माई सरप्राइज पूरे स्कूल में समझा कर 400 बच्चे है, 400 से डोगरी बोलने वाले 4 या 5। बड़ा सरप्राइज, मैंने कहा ये बच्चे डोगरी नहीं बोलते, थिंक ऑफ नेक्स्ट 25 साल बाद क्या होगा, 40 साल बाद क्या होगा, नोबडी विल स्पीक डोगरी। तो ये बड़ा हिट किया मुझे। फिर मैंने सोचा कि स्कूलों से शुरू करें, सभी को जाएं, खुद ही डोगरी पढ़ाएं। इवेंट टू सीओ ऑफिस, कहते हैं मेरे साथ 1800 स्कूल है मेरे पास, सीओ जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, प्रोविंस में पता नहीं 8000 है। मुझे लगा नॉट पॉसिबल। फिर मैंने पूरा स्टडी किया, अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राइट ऑफ स्टूडेंट, चिल्ड्रन का राइट, जैसे 2009 का एक्ट है कि किताबें फ्री मिलनी चाहिए 9th तक सभी बच्चों को, 8th तक, जिस एक्ट हमारे स्टेट में है। और मदर लैंग्वेज जो है वो 5वीं तक कंपलसरी होनी चाहिए, दिस इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पूरा स्टडी करके आई मेड ए प्रपोजल, एंड सीनियर सिटीजन के हमारे चेयरमैन 2-3 और पर्सनालिटी लेके मैं गवर्नर लैलजीज उनके पास चला गया। मैंने लेट मी स्टार्ट फ्रॉम टॉप, उनको मैंने दिया प्रपोजल, ही वाज वेरी हैप्पी। कहते ये तो एनईपी में लिखा है, होना चाहिए, हो रहा होगा, नीचे कुछ नहीं हो रहा, आपने करना है। पर शायद गवर्नमेंट मशीनरीज आज जनरली, हमें लगता है कि उन्होंने नीचे भेजा होगा, आगे कहीं डस्टबिन में चला गया होगा, वो नीचे तक पहुंचता नहीं। उनकी इंटेंशन अच्छी थी। ट्रैक रखता हूँ सारा, एडवाइजर से मिला, सेक्रेटरी एजुकेशन से, बोस के चेयरमैन से, मुझे लगा कहीं भी नहीं था, एंड नोबडी वाज एग्री। जब मैंने पॉलिसीज कोट की तो फिर मुझे लगा आई मस्ट नाउ रिटेलिएट। फिर मैंने न्यूज़पेपर में रिटेलिएटरी लिखना शुरू किए सारे आर्टिकल्स। इज डोगरा कल्चर डाइंग, माई फर्स्ट आर्टिकल, पूरा डिटेल, पूरा डिटेल्ड है पूरा। देखिए दूसरा आर्टिकल मैंने लिखा, इज JNK एग्जेम्प्टेड टू फॉलो NEP, 370 तो टूट गई है, क्या नेशनल पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर रही, स्कूलों में नहीं अडॉप्ट हो रही। ऐसे मैंने आर्टिकल वहां देना शुरू किए। और फिर हमने डिफरेंट टाइप की, मुझे लगा कि गवर्नर से होकर नीचे तक तो हम आगे हैं, पर अच्छा लगा। 2-3 कमेटियां ऑर्डर हो गई उसके बेस पे, NEP इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही, उसकी कमेटी ऑर्डर हो गई। राजेश मगोत्रा, समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ही वाज मेड इन चार्ज। एक सिलेबस बना के कमेटी हो गई, उसको बोलते हैं SCF, दैट इज स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, उसकी कमेटी ऑर्डर हो गई। मैंने कहा NEP इशू हुए तो 3 साल हो गए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद SCF बनता है, एक NCF बनता है, दैट इज कॉल्ड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। मैं वो 2022 में बनाया नेशन ने कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। JNK कर ही नहीं कुछ रही। फिर कमेटी ऑर्डर हो गई और काम शुरू हुआ, अच्छा लग रहा है। अभी आई थिंक इट विल बी कंपल्सरी हो जाएगी। अभी जो मैंने इनका बनाया है सिलेबस, इन्होंने डोगरी कंपलसरी हो जाएगी। तो दिस आई स्टार्टेड एट द गवर्नमेंट लेवल। तो गवर्नमेंट लेवल में स्टिल विद देम, गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज, ये वो। कल भी आई जस्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मेरी बात नहीं, आई वाज देयर बट समहाउ बिजी कहीं और थे, अदरवाइज आई थॉट आई जस्ट कन्वे हिम आल्सो। तो मैंने गवर्नमेंट लेवल के से शुरू किया और अपनी स्ट्रेटजी बनाई। आई डोंट नो वेदर यू लाइक टू नो अबाउट द स्ट्रेटजी व्हिच वी मेड एंड नहीं सर, बताइए। तो मैंने कहा एक तो सबसे पहले बच्चा मस्ट बी ट्रेंड इन डोगरी। अगर बच्चा ट्रेन, स्कूलों में जब गया तो मुझे लगा कि किताबें क्यों इशू नहीं कर रहे, जबकि पॉलिसी है, एक्ट है। 8वीं तक स्कूल से पूछा मैंने ZDO को, कहते सारे इशू करते हैं हम, इंग्लिश की 8वीं तक कर रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं, उर्दू कर रहे हैं। मैंने कहा डोगरी अप टू 2nd, पहली और दूसरी। फिर मैंने स्कूलों में गया, टीचर से पूछा, कहते जी पहले 5वीं तक होती थी, फिर 4थी तक, फिर तीसरी तक, अभी दूसरी तक कर दे, पर पढ़ाता कोई भी नहीं फिजिकली, दैट इज अ कंडीशन। फिर मैं सब जगह पैसे कैसे रिलीज होने, वो दैट एक्शन आई डिड। तो एक स्ट्रेटेजी बनाई गवर्नमेंट लेवल पे, मैं आई एम जस्ट। दूसरी स्ट्रेटेजी में हमने बनाई कि स्टूडेंट्स को टारगेट डायरेक्टली फिजिकल कंटेंट। तो हम स्कूलों में जाते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन, मैं भी जाता हूँ, 16 स्कूल मैंने कवर किए हैं। वहाँ 8-10 बच्चे खड़े करते हैं, उनको जो भी जिसको डोगरी आती है, जब वो डोगरी में कुछ भी बात बोलते हैं ना, चाहे गुलाब, कोई कल्चर की बात, गुलाब सिंह के बारे में बोले, होली के बारे में, लोहड़ी के बारे में, जोरावर सिंह की बात बोले, माता वैष्णो देवी की बोले, सुनने वाले 100 बच्चा सुन रहा है। कल्चर का एक डोगरी तो नहीं, पर डोगरी में सुन रहा है, डोगरी तो उनको, और तालियां जो बजती हैं उसके बच्चों को, जो
उनको सर्टिफिकेट देते हैं, और जो बच्चा था फर्स्ट उसको 1,000 रुपया हमें स्पॉन्सर है हमारे पास, ही गिव्स 1,000 रुपीज। ऐसे 16 स्कूल हैव गॉन माई सेल्फ पर्सनली, 16 स्कूलों में, जिसमें हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, और कई स्कूलों ने तो डोगरी कंपलसरी प्रिंसिपल ने कहा फ्रॉम फर्स्ट टू 9th। ये जब हम उनसे करते हैं, वो एक तो ये स्कूल लेवल पे, फिर उनके कंपटीशन छोटे छोटे लेवल, बड़े बड़े लेवल। अब इस लास्ट संडे को हमारा कंपटीशन 125 स्टूडेंट्स डोगरी डोगरी बोल रहे हैं सारे, जो पहले 0 होता था अभी सब डोगरी। इनके फिर प्राइस 5,000, 3,000, 2,000। अगले संडे को हमारा फिर MEM कॉलेज में है, उसमें कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उनको भी इनाम 20,000 तक का इनाम उनको देना है, जो टॉप का स्टूडेंट। तो ये हमने स्टूडेंट लेवल पे फिजिकल एक वो शुरू किया। फिर दूसरा किया कल्चर पार्ट, कि डोगरी ड्रेस कंपटीशन। 125 बच्चियां थी, लड़कियों की ड्रेस, किनारी वाली कमीज, सलवार कमीज, है ना, उधर टिक्का सा होता है वो सारा। 125 में साफा, के डोगरी की टर्बन को तो साफा बोलते हैं, साफा टाइम, छोटे छोटे बच्चे साफा बांध रहे हैं, 35 बच्चे थे। तो ये दूसरा पार्ट शुरू कर दिया। तो हमने एक फिजिकल गोइंग, दूसरा ये, तीसरा जो हम बच्चों के साथ काफी एक्टिविटीज करते रहते हैं, ये हमने स्कूल के बच्चों के। कॉलेज के बच्चे जिनको डोगरी नहीं आती, आई थॉट उनके चलो क्लब बने, डोगरी क्लब। एक क्लब तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, आई थिंक अजय जी वाज देयर इन दैट क्लब लास्ट में। तो वो डोगरी के 150 बच्चे हो गए, वो डोगरी डांस, डोगरी भांगड़े, डोगरी गाने सब। और अगले हफ्ते फिर उनका प्रोग्राम है। तो कॉलेजेस में क्लब्स का यहाँ पर ये शुरू किया। और सोसाइटी में तीसरा हमारा स्ट्रेटेजी थी, सोसाइटी में जितनी ऑर्गेनाइज, ताकि लोगों को एक जो गलत नैरेटिव चला है कि डोगरे ग्राई हैं, डोगरे डंगर हैं ना। हमारे पेरेंट्स ने भी बोला कि भाई डोगरी मत पढ़ो, और डोगरी बोलोगे तो ग्राई लगोगे, अनपढ़ लोगे। तो वो एक नरेटिव उस जमाने से चला आ रहा है, अभी तक चला आ रहा है। घर में अगर कोई भी अगर डोगरी नहीं बोलता, हिंदी बोलते हैं, तो उनके बच्चे क्या, उसकी मातृभाषा क्या होगी, डोगरी तो हो नहीं सकती। मेरे घर में आपके सारे बोलते हैं, आपकी बहू डोगरी हिंदी में बात कर रही है आपसे, तो उसके बच्चे की भाषा तो हिंदी होगी। तो ऐसे फिर हमें सोसाइटी में जाते हैं, जैसे अमर सिंह क्लब की, उनके 100 बंदे इकट्ठे हुए, उनमें ये लेके डोगरी का उनसे पूछते हैं। ये अपना नेहरू मार्केट में जो ट्रेडर एसोसिएशन, उनके पास हम चले गए, अमर सिंह क्लब में चले गए, CCI जो है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ऐसे ये सोसाइटी लेवल पे शुरू किया। दूसरा सोसाइटी लेवल पे किया कि जो पढ़ने वाले हैं, जैसे किताब लिखी, इंटरनेशनल पेपर भी एक लिखा है इंटरनेशनल डोगरी के बारे में ही, अभी दिसंबर में पढ़ा गया था। एंड थर्ड पार्ट जो हमने इसका किया है सोसाइटी में, न्यूज़पेपर में। अभी आप देखो न्यूज़पेपर में काफी आ रहा है, कि मैं भी आर्टिकल देता हूँ, सारे देते हैं, न्यूज़पेपर है बिकम एक्टिव। तो ये हमने सोसाइटी लेवल। थर्ड पार्ट इज, लास्ट पार्ट इज अबाउट ये जो वाइस चांसलर्स हैं, कॉलेज तो वही कंट्रोल करते हैं। आई हैव बीन टू ऑल द वाइस चांसलर, तीनों चारों जो जम्मू में है, और अच्छा लगा, इन्होंने रिस्पॉन्स हैव बीन वेरी गुड, दे वांट टू डोगरी। एक तो वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी की, तो वो कहते हैं कि इट्स नॉट जमहूरियत, इट इज जम्हूरियत, जम्हूरियत का हम फॉलो करना चाहिए सारा। उन्होंने डोगरी के बोर्ड लगा दिए। वाइस चांसलर उधर का है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने, टाकरी जो हमारी स्क्रिप्ट थी डोगरी की, उसका सेंटर खोलने का एक प्रपोजल बना लिया है, वो खोल रहे हैं। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी में 7 दिन इसके डोगरी के मनाए, जो मान्यता दिवस, 7 days, ऑल कॉलेज में मुझे वीडियो भेजे। व्हाट आई से, strategy government level, physical contact with the students in the colleges and the schools. थर्ड इज द सोसाइटी के साथ, ताकि जो पुराना सोसाइटी, घर में डोगरी बोले, और बच्चों को बताते हैं कि भाई जब बाजार जाते हो तो दुकान वाले को ये नहीं कि भाई 20 रुपए के समोसे दे, उसको बोले यार 20 रुपए के समोसे दे, उसे डोगरी बोलो, घर में डोगरी बोलो। ऐसे मतलब एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज वी हैव थॉट, एंड इट इज वर्किंग आउट। आई थिंक मजा आता है जब हम देखते हैं तो काफी लोग डोगरी बोलते हैं, तो यू फील वेरी हैप्पी। और ये भी दिस इज ऑन, बंद नहीं हुआ, इट्स ऑन। नहीं सर, ये मैं यही पूछना चाहता हूँ सर, ऐसा क्या है हम लोगों के बीच में कि डोगरी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ दिया गया है, कि ग्राई लगना, डग्गर लगना। पंजाबी स्पीक्स पंजाबी वेरी प्राउडली, तेलुगु देखो, कश्मीरी देखो, अरे फिर सारे कुते भी देखो सर, कन्नड़ा अपनी भाषा हो, इन्ने ओदे कन्ने बोलदे ते साढ़े च कुदरों आया है कॉम्प्लेक्स? ये हिस्टोरिकल है, सारे राजे सारे डोगरे रे, है ना। 47 तक, 1946 श्रीनगर एक मूवमेंट चली, 46 से पहले, कि डोगरे के नीचे हम नहीं रहेंगे। एंड वहाँ का जो शेख अब्दुल्ला ही थे, यहाँ के जो वहाँ के लीडर जो थे, और 46 में उन्होंने रखा था क्विट कश्मीर, क्विट कश्मीर, डोगरा राजा मस्ट क्विट कश्मीर। वो तो राजा हरिचंद जी ने अंदर कर दिया। पर 47 में हम तुम
कंट्री के साथ मिल गए, एंड जो भी कहानी बीच में चली, एंड सेम इंडिविजुअल जिसको अंदर किया था वो रिलीज भी हो गया, एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर जेएनके। और एज पर डॉक्टर करण सिंह, कहता है ये करण सिंह तब तो यहाँ के रीजेंट भी थे और बाद में वो भी रहे सदर रियासत शुरू से ही। तो कहता है ये तो डोगरों को गालियां निकालते थे, एंड हिज स्ट्रेटेजी वर्कड आउट वेरी वेल। एक तो उसने बोला था कि हम डोगरों के नीचे नहीं रहना, और अब पूरी स्टेट का बॉस वही है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है इंडिया का। उसने भेजा कि नेम ऑफ जेएनके शुड बी चेंज टू स्टेट ऑफ कश्मीर, कश्मीर। ये भेजा उसने उधर। दूसरा उसने बोला कि लैंग्वेज वहां पर जो नेशन में भेजनी है, नो डोगरी, जो यहाँ की ऑफिशियल भाषा थी, नीचे इट शुड बी ओनली उर्दू एंड कश्मीरी। तो हमारे 8th शेड्यूल में उर्दू कश्मीरी आ गई यहाँ पर खत्म। और एक नेगेटिव नरेटिव स्टार्टेड कि जो डोगरा है, ढंगर है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा। ऐसा नेगेटिव हमारे जो पेरेंट्स भी हैं, हमारे काफी जो घरों में भी उनका बच्चे हिंदी सीख यार, अंग्रेजी बोल, थोड़ा जॉब मिलेगी, ये नेगेटिव नरेटिव अभी तक चल रहा है। ये मैं पता ना, हेड क्लर्क वो डोगरी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा डोगरी बोला तो मैं ही चपरासी हो जाता हूँ, मैं हिंदी बोल रहा तो थोड़ा बड़ा लगूं, और अफसर होगा तो बोलता है मैं अंग्रेजी इसके साथ बोलूँ तो शायद मैं और बड़ा अफसर लगूं। अपनी वही। भाषा जो है, क्योंकि स्कूलों में कंपलसरी नहीं है ये, जब यस। स्कूल में कंपलसरी नहीं है और 8वीं तक फ्री किताबें मिली है, ने दूसरी तक कर दी, दिस इज अ नेगेटिव नॉलेज, जिस हम करेक्ट अभी कोशिश जारी है थोड़ी सी, ये है। मुझे लगता है ये सर मास मूवमेंट बननी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है लैंग्वेज एक फर्स्ट पॉइंट है और फर्स्ट थिंग है जो कि एक कोर भी है किसी कल्चर का। बिल्कुल लैंग्वेज ही चली गई तो खत्म सब कुछ। तो लैंग्वेज के साथ ही ये कल्चर ट्रांसमिट होता है आगे। वही मैंने भी सर बड़ा रियलाइज किया। मैं पिछले अब 8-9 साल से यहीं जम्मू रीजन में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जब भी मैं क्योंकि हमारे पास वो ऑनलाइन सिस्टम होता है, कंप्यूटर फर्स्ट पहले ही आ जाता है हमारे पास डाटा कि ये पेशेंट कहाँ से है, क्या एज है, कहाँ से है। तो मैं जानबूझ के जो डोगरा पेशेंट है उसके साथ मैं डोगरी में स्टार्ट करता हूँ बड़ा पहली अच्छा। बार। हाँ नहीं, स्टार्ट तो करता हूँ, आगे से जवाब हिंदी में, एक बार हिंदी में आता है, फिर मैं दोबारा डोगरी में पूछता हूँ, दोबारा हिंदी में आता है, तीसरी बार मुझे बोलना पड़ता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ डोगरी आंदी कि नहीं आंदी। बोलते हाँ जी आंदी। मैं हाँ आज कुत्थे बैठे थे, दिल्ली बैठे थे या इंग्लैंड बैठे थे। बोलते नहीं जी जम्मू बैठे थे। मैं अगर जम्मू च डोगरी नहीं बोलनी तो असं दिल्ली जाइए थोड़ी बोलनी। फिर वो देन दे स्टार्ट विद डोगरी। ये रूरल एरियाज की भी बात कर रहा हूँ मैं, हाँ गाँव का बिल्कुल। पेशेंट और अगली जनरेशन। और अभी मतलब मुझे बड़ा दुख होता है और यही लगता है, मैं तो धड़ल्ले से डोगरी में बात करता हूँ। मैं अगर मुझे नलायक डॉक्टर समझना समझते रहो, लेकिन मुझे अपनी डॉक्टरी आती है, लेकिन मैंने अपनी डोगरी बोलनी है। और एक छोटा सा प्रयास हमने भी सर किया, अच्छा, अपनी जो मेरी पर्सनल प्रिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने टाकरी स्क्रिप्ट में लिखा है। और मेरी वो कंसल्टेशन लवली। हमेशा, हाँ, हमेशा कोशिश होती है कि अपनी मदर लैंग्वेज जिसको डोगरी आती है वो डोगरी में करेगा, और आप एक सिटी में अपनापन आता देखोगे सर। टाकरी के बड़े बोर्ड लगे होंगे सिटी में, काफी बोर्ड जी टाकरी के। अभी मेरे पास ड्राफ्ट आया था, वो एक, आई नॉट टेल द नेम, है वेरी वेरी हाई ऑफिशियल का, उसका बाहर बोर्ड बन रहा है, दैट इज इन टाकरी। मेरे पास अभी करेक्ट होने आया था, मुझे आते दिन ही मैंने भेजी कंसर्न टाकरी वाले को कि उसका नाम, उसने अपना नेम बोर्ड जो ऑफिशियल है, वेरी सीनियर ऑफिसर ऑफ जेएनके स्टेट, तो मेरे पास है ऊपर टाकरी में, नीचे हिंदी, नीचे इंग्लिश। मतलब थिंग्स आर चेंजिंग, एंड चेंजिंग नहीं, जैसे बदलाव आपने आ रहा इतना है। एफर्ट किया है, हम बोर्ड लगवा रहे हैं, 20 बोर्ड ऑल लग चुके हैं। अब अमर सिंह क्लब के बाहर एक बहुत बड़ा क्लब है जम्मू का, टाकरी में लिखा है। सीसीए का बोर्ड देखो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टाकरी में लिखा है। बट ऐसे सभी जोर लगाएं, एंड हमारा जो एक है ना, सेल्फ एस्टीम जो है, वी कैन रीगेन। अदरवाइज सेल्फ एस्टीम वही की ग्राई हैं, डंगर हैं, तो हम ही हिंदी बोलेंगे, है ना। जी सर, बहुत बहुत अच्छा बोला सर। सर, अगले क्वेश्चन से पहले मैं एक डिस्क्लेमर फॉर आवर व्यूअर्स। जब भी सर हम इसका ना पब्लिश करते हैं अपना इस वीडियो को, तो दे ऑलवेज से कि आप इसको डोगरी में क्यों नहीं करते हो, वाइल दे ऑलवेज से कि डॉक्टर विकास भी डोगरे हैं, डोगरी में बात करते हैं, मैं डोगरी में बात कर सकता हूँ, जो गेस्ट आते हैं वो डोगरी में। बस मेरा एक यही आंसर रहता है, विच आई राइट ऑल्सो एंड आई एम सेइंग इन एवरी पॉडकास्ट, कि वी वांट डोगरा नेम शुड गो वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल भेजने के लिए समहाउ टू विन द बिग बैटल वी नीड टू लूज स्मॉल वॉर्स। हम अपने तौर पे अपने कंटेनर में वी स्पीक डोगरी वेरी वेल इन आवर सर्कल्स, इन आवर फैमिली, इन आवर फ्रेंड्स, बट वी वांट टू क्रिएट डोगरा नेम आउटसाइड JNK, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। और उसके लिए लैंग्वेज चाहिए विच इज अ ब्रिज लैंग्वेज विच कैन बी इंग्लिश ऑल्सो। और इसका सर फायदा भी हुआ है, कई लोग जिनको पता ही नहीं था कि डोगरी एज ए कम्युनिटी है, हमारे पॉडकास्ट के बाद मेरे को और डॉक्टर विकास पादा को लोगों ने मैसेज भेजा कि हम कई देर तक सोचते थे कि मेरे पड़ोस में रहने वाला US में पड़ोसी जो है
वो हिमाचली है या कश्मीरी है। सो फर्स्ट अच्छा टाइम उसको ये रियलाइज हुआ कि एक डोगरा कम्युनिटी भी है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था अजय खजूरिया सर से जो डीसी रह चुके हैं, देन जनरल जम्वाल पे गए, सीमा सहगल जी पे करेक्ट गए, करेक्ट एंड ए करेक्ट। लॉन्ग लिस्ट। एंड उसकी वजह से दैट इज वाई मैं डिस्क्लेमर इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें डोगरी से प्यार है, बोल भी सकते हैं, लिखते भी हैं, बट वी वांट टू स्प्रेड दिस मैसेज वर्ल्ड वाइड। विद दिस आई एम मूविंग टू सर नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। Sir, many young Dogras today struggle to balance career ambition with cultural identity. जो आपने बड़े अच्छे तरीके से सर कहा कि मैं डोगरी बोलूंगा तो शायद मैं पियोन बन जाऊंगा। What would you say to young listeners who are torn between serving the nation, chasing dreams, and staying rooted in Dogra values? आपका ये क्वेश्चन रिप्लाई करने से पहले मैं बताता हूँ, जो आपने बोला कि आप डोगरी में क्यों नहीं बोल रहे। ये जो मैंने अपनी ये बुक बताई है आपको, ये बुक इंग्लिश में है, जी। नाम है डोगरा कल्चर। तो बिकॉज दिस इज बेसिकली कि डोगरों से सीख के फॉरेन की 3,000 इंडेंजर्ड लैंग्वेज है वर्ल्ड में, उनको आप कैसे ठीक कर सकते हो। टेक टू फ्रॉम डोगरा कल्चर। ये मैंने इसमें दिया कि डोगरे कैसे नीचे चल रहे थे, 8 लाख रह गए थे 1961 में 47 से, और जैसे ही स्ट्राइक जो भी एफर्ट किया डोगरा ने, अभी 26 लाख हो गए थे पिछला जो सेंसस हुआ है। तो ये मैं टेम्पलेट सभी उनको पूरी दुनिया के यूनेस्को ने 3,000 एंडेंजर्ड कल्चर दिए हैं, उनके लिए ये किताब बेसिकली फॉर देम, इट इज इन इंग्लिश। तो ये दूसरी लैंग्वेज इसलिए ताकि वेरी मेनी पीपल नो। दूसरा आपने क्वेश्चन है ये दिस अबाउट जो हम फंस जाते हैं कि करियर के बीच में और कल्चर के बीच में। मैं ये कहता हूँ कि हमारा इंडिया में 3 लैंग्वेज फार्मूला है ना, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 2 लैंग्वेज जो है ना, हिंदी एंड इंग्लिश, ये आपको चाहिए क्योंकि ये कनेक्टिविटी विद द आउटसाइड वर्ल्ड है। जम्मू से बाहर आपने जाना, यू नो इंग्लिश, और आपको जॉब वगैरह वही दिलाती है। लेकिन अगर ये आपने अपने माँ बाप से कनेक्ट करना है, भाई बहन से, अपने स्कूल से, अपने दोस्तों से, और अपने आप को शांति रख देनी है, तो आपको लोकल लैंग्वेज हैज टू बी नोन। उस अब ये जॉब के लिए नहीं है, इट इज बेसिकली आपको अपने कनेक्टिविटी मेंटेन है। अभी फॉरेन में क्या है, जैसे मैं कितनी बार यूएसए गया हूँ या दूसरे कंट्रीज में गया हूँ, देर इज वन आइटम कॉल्ड कल्चरलेसनेस। अमेरिका में जितने हैं, चाहे डोगरे हैं, चाहे इंडियन है, पाकिस्तानी है, चाइनीज है, सब इकट्ठे हैं, एक ही कल्चर है। जब कोई मुश्किल होती है ना, यू हमें ऑलवेज रिमेम्बर आई मॉम, आप अपना कल्चर की वर्ड यूज करते हो, और आपको दैट इज अ टाइम यू व्हेन यू वांट सुलेस, यू वांट टू कम बैक टू कल्चर। तो वहां पर सारा कल्चरलेसनेस है, और वहां जो उसमें डूब जाता है, घर में चाहे फादर बीमार है, चाहे मदर बीमार है, बहन की शादी, डजंट कम बिकॉज उसको डोगरी नहीं आती ना, तो उसका अटैचमेंट बड़ी कम हो जाती है। वो कहता है क्या आज घर जाऊं, मेरी दादी कुछ कुछ बोलती रहती, समझ नहीं आती, है ना। तो अगर हमें अटैच रहना है अपने इस घर के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ, तो कल्चरल पार्ट हैज टू बी देयर। पंजाब में पंजाबी 10वीं तक कंपलसरी है, 10th अप टू 10th इज कंपलसरी। कर्नाटका चले जाओ, माई ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीज हैं, अप टू 8th इज कंपलसरी, ही इज लर्निंग कन्नड़। पर हमारा क्योंकि जो था ना कि लैंग्वेज भेज दी उन्होंने, कश्मीरी एंड उर्दू, और हम सारे उर्दू पढ़ते 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 पढ़ते, तो डोगरी और स्कूलों में कंपलसरी नहीं हुई। तो मेरा सिर्फ यही है कि करियर के लिए तो आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट है लुक्ड आफ्टर, दैट मीन्स इंग्लिश हिंदी तो रखा है, 3 लैंग्वेज फार्मूला। अभी जो नया हमारा आ रहा है ना, अभी जो मैं बता रहा हूँ सिलेबस का रिवाइज हुआ, जो मैंने कमेटीज बनी हैं, उसमें languages are called L1, L2, L3. L1 is a language to be taught in first 3 schooling years. That will be your mother tongue. ये भी साइन होना है शायद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास पड़ा है, किसके पास, जैसे ही साइन है था पूरे JNK में फर्स्ट लैंग्वेज हम जो सीखेंगे विल बी डोगरी फॉर 3 years. Second is L2. L2 is English. L2 will be हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत। ये L2 जो प्रपोजल पूरा बना है, इन्होंने 6 महीने मेहनत की है। और L3 will be English. English will be at a later stage. पहले 3 साल will be taught, चाहे जुबानी हो चाहे लिख के, will be mother tongue. तो हमें वी शुड फील प्राउड। अब जैसे मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वाइस चांसलर स्पीक विद डोगरी एंड ही फील्स वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि शायद उनके साथ डोगरी बोलता कोई नहीं है। और मैं प्रोफेसर, कई बार हम मीटिंग में ही होते थे, प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोफेसर MBA, मेरे के साथ सारे डोगरी और आपस में इंग्लिश, क्योंकि हमारा साइक ये है अभी तक। तो इसलिए हम सोसाइटी में जाते हैं तो चेंज देयर साइक, ताकि घर में डोगरी, 2 चीजें, घर में डोगरी बोलो, और जब दुकान में बच्चे जाते हैं तो दे शुड आस्क इन डोगरी टू शॉपकीपर, शॉपकीपर विल फील हैप्पी।
हिंदी में मत बोलो कि भाई भैया ये दूध 2 किलो दूध देना ना, 2 किलो दूध दे यार, समथिंग। तो ये दो चीजें आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्राउड फील होगा। दिस इज व्हाट आई फील की करियर एंड करियर, इसके लिए दो लैंग्वेजेस हैं ऑलरेडी, तीसरी दिस मस्ट। Perfect, sir. तो सर यंग डोगराज की सर बात कंटिन्यू रखते हैं कि यंग डोगराज हम सुन रहे हैं कि ये कनेक्टेड नहीं है अपनी रूट्स के साथ सर। करेक्ट करेक्ट। तो एज एजुकेटर, एज पेरेंट्स, और जैसे हमारी पॉडकास्ट है, ये भी एक एफर्ट है टू रिकनेक्ट विद आवर रूट्स, आवर कल्चर, आवर लैंग्वेज। तो हम कैसे सर इसमें अपना और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, नॉट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन बट विद प्राइड? एक तो जैसे हमारे जो लेक्चर सभी के सोसाइटी के साथ रहते हैं वो पेरेंट्स के लिए हैं, प्राइमरी पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए। उनको हम ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा 10वीं 12वीं हो गया, यहाँ से चला गया इंजीनियरिंग करने, एमबीए करने, कहीं भी बाहर चला गया, डोगरी अगर उसको नहीं आती होगी, उसका इंटरेस्ट नेचुरली विल बी लेस है। मे बी आफ्टर 10-15 ईयर हो सकता है आपकी बात ही ना सुने, आप बूढ़े रह जाओगे, दो दो बंदे घर में, बूढ़ा बूढ़ी, और बच्चे निकल गए बाहर। सो उनको मैं सभी को बोलता हूँ, इफ यू वांट टू रिटेन योर चाइल्ड विद यू, तो उसको घर में डोगरी में बात करो। नंबर वन पेरेंट्स के लिए ये कि घर में आपस में जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन डोगरी रखो। और बच्चा जब स्कूल जाता है उसको बोलो टेक डोगरी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ऑफिशियल है ये तो। पर वो स्कूल वाले नहीं देते, वो भी डिस्करेज करते हैं, क्या क्या डोगरी फ्रेंच ले लो। तो मैं पूछता हूँ कितने की माँ मदर टंग फ्रेंच है, कितने माओ की मदर टंग फ्रेंच है। तो ये मदर उनके लिए है, जो जैसे एजुकेटर्स के लिए है कि दे शुड थिंक कि भाई अभी डोगरी पढ़ानी है, मतलब मस्ट टीच डोगरी। स्कूलों में मैं जाता हूँ, टीचर जो हैं वो भी डोगरी बोलने से शर्माते हैं। वो कहते वही ना, आप डोगरी मीन्स ये ग्राइन है। और हाँ। तीसरा जो साइक बना रखी है डोगरी की। और आपका जो पॉडकास्ट आप कर रहे हैं प्राइमरली कल्चर के लिए है ना, पॉडकास्ट या जितने भी हमारे मीडियाज हैं, अगर ये मीडिया की काफी आइटम आप डोगरी डोगरी रिलेटेड करें, जैसे आपका एक पॉडकास्ट है, दो इट इज इन हिंदी इंग्लिश ऑल लैंग्वेजेस में है, लेकिन सब जो सुनते हैं इसको, दे गेट मोटिवेटेड कि भाई हाँ भाई ये भी एक लैंग्वेज है, ये हमारी। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ जैसे हम आपको मोटिवेट करने के लिए कोई आपको आइकॉन चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे हम जोरावर, जनरल जोरावर सिंह, आप जनरल जोरावर सिंह की कहानी के डोगरे थे, उन्होंने देखा किश्तवाड़ के इंचार्ज थे, जनरल थे, देखा सारे मेरे डोगरे तो बहादुर है, मार्शल रेस है, मतलब हम उनके अंश है मार्शल रेसेस के। तो इकट्ठे किए और जाके कहा कि कारगिल, लेह लद्दाख तिब्बत तक पहुंच गए थे वो। तभी अगर आप डोगरी जानते हैं, अपने आप को डोगरा समझते हैं। अगर आप डोगरी नहीं जानोगे, यू विल हैव नो, आपको मोटिवेशन करने के लिए कुछ नहीं होगा। एंड कल्चरलेसनेस जो बीमारी है, जो ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में है, अगर वो आ गई तो देन आपको सुलेह देने वाला कोई नहीं। जब आप मुश्किल में होगे तो यू कैन नॉट फॉल बैक टू एनीबडी। तो इसलिए ये आपके प्लॉट का ये भाई बहुत है, सारे मीडिया जितने भी हाउसेज हैं, दे शुड आल्सो डू की डोगरी का जो प्रोग्राम है। जो न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ काफी डोगरी आइटम्स आती हैं, टीवी में शुरू हो गई हैं, आपने शुरू किया है, बहुत बड़ा। आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील। Sir, growing up, uh, you talked about कि चंद्रशेखर आजाद जो थे, जनरल जोरावर सिंह, वो सब रोल मॉडल रहे थे सर। उसके अलावा सर आपके कौन से रोल मॉडल और रहे थे, एंड व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग डोगरास अबाउट फाइंडिंग द राइट पीपल टू लुक अप टू, नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज? क्योंकि आज की डेट में सर हम देखते हैं कि दे एप द सेलिब्रिटीज बट नॉट द रियल हीरोज फ्रॉम देयर ओन लैंड। कितने बच्चे हैं सर जिनसे बात करो, सलमान खान, शाहरुख खान, दे टॉक अबाउट देम। आई एम नॉट अगेंस्ट एंटरटेनमेंट, बट दे कांट बी योर रोल मॉडल। योर मॉडल कैन बी जो हमारे परमवीर चक्र होल्डर मेजर सोमनाथ जी थे, वैसे लोग हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं। सर व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, अगेन कमिंग बैक टू हु वर योर एक्चुअल रोल मॉडल्स, और आज के बच्चों को रोल मॉडल चूज करने के लिए व्हाट इज द मंत्रा यू वांट टू गिव सर? रोल मॉडल की जब बात करो तो घर में, क्योंकि मैंने बोला ना सिंपल घर था, सिंपल फैमिली, फादर सिंपल। तो फादर ही मेरे लिए एक बड़े बहुत बड़े रोल मॉडल बने कि उन्होंने जो कि बड़ा हार्ड वर्क एंड सोशल वर्क, ये दो चीजें जो मैंने उनको देखता था, और उनकी पॉपुलैरिटी में देखता था सोसाइटी में। उनकी बहुत पॉपुलैरिटी थी अपने पूरे मोहल्ला जम्मू में, काफी उस जमाने में, मतलब 50-60
तो ये मेरे लिए रोल मॉडल वही थी। अब आई का टाका माई मदर ऑल्सो, उनका ये एक था कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, समझो घर में जितनी पे आती है उसी में सब गुजारा करना, थोड़ा सेव भी करना है ना। नहीं तो ऐसा ऐसा था ना, आजकल तो आप जीपे पे जितना पैसा मर्जी बाद में पता, या क्रेडिट कार्ड में खर्च कर दिया, बाद में पता चला वो पैसे उड़ गए, थे ही नहीं, टैक्स लग रहा है आपके ऊपर, इंटरेस्ट लग रहा है। तो मेरे घर में ही जो रोल मॉडल थे, माई फादर वॉज ए ग्रेट रोल मॉडल, माई मदर इटसेल्फ की, ये जो दो चीजें हमने सीखी ना, अपने पास कितना भी जब क्राइसिस भी होता था फाइनेंसिस, पर मदर की बात वही याद आती थी कि नहीं उसी में गुजारा करना है, डोंट बैक, आगे से बैक करो, स्टील करो, नो। ये मेरे लिए ये दो मॉडल घर वाले ही थे। एंड देन टीचर जिसने मुझे बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि बच्चे तू बहुत ऊपर वाली क्लास में आ गया, सडनली चौथी क्लास में आ गया, फोर्थ क्लास, तो घर में एवरी डे जो 15 मिनट या आधा घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि दिस हेल्प मी, दिस थ्री थिंग्स, ये हुए अपने घर के अंदर स्कूल के। आई फील दीज वर फॉर मी, वेर एज जनरल रावर सिंह कईयों के होते हैं, पर कहानी जो हम सुनते रहते हैं, चंद्रशेखर की तो उसका जोश रहता है, चंद्रशेखर के ऐसा भगत सिंह जैसे बनेंगे, वो जोश तो रहता है। बट बेसिक रोल जो है ना, जो अपने इनग्रिल हो गई है क्वालिटीज, प्राइमरी व्हाट यू सी इन योर फादर, यू सी इन योर मदर, या जो टीचर ने बताए हैं, दीज आर द वंस, दिस इज व्हाट आई फील। Sir, your life is a master class in how regional identity can beautifully align with national service. Usually क्या होता है कि रीजनल आइडेंटिटी की बात की जाती है तो नेशनलिज्म को वो एक थ्रेट समझा जाता है कि अगर हम डोगरा डोगरा, ये हम मुझे भी बड़े पैट्रियाटिक लोगों से सीखना, इंस्ट्रक्शंस कई बार मिली है, नसीहत है कि डोगरा डोगरा कम करो, बी प्राउड इंडियन। So, sir, how do we teach young people that being a proud Dogra complements being a proud Indian? आई फील कि जब आप जैसे कहते हैं ना, आप अपने छोटे पोर्शन में सक्षम हैं, यू आर वेरी कॉम्पिटेंट इन योर स्मॉल, तो ये ऑटोमेटिकली बड़े एरिया में यू आर आल्सो सक्षम है काफी। इफ यू वांट टू से आई एम प्राउड डोगरा, जैसे आप, वो तो ऑटोमेटिकली आप इंडिया की एक, यू आर पार्ट ऑफ इंडिया, तो आप ऑटोमेटिकली प्राउड इंडियन हो ही गए आप। प्राउड डोगरा डजंट मीन कि मैं जाके पंजाबी से लड़ाई करूंगा। प्राउड डोगरा मीन्स वट एवर आई स्पीक, वट एवर आई ईट, मुझे अगर डोगरा मिलता है, वो है ना कि लैंग्वेज है आपको एकता सिखाती है बेसिकली। तो द मोमेंट यू से आई एम प्राउड डोगरा, लोकल कल्चर का है, ऑटोमेटिकली सप्लीमेंट्स अ नेशनल फीलिंग, कि आपने देखे कोई डोगरा आपको मिला जो इंटरनेशनल है, नो एनीबडी इज ग्रेट डोगरा, व्हाई टॉक ऑफ जैसे महाराज, तो दे आर ऑल नेशनलिस्टिक। तो अगर आपका मेरा अपना डोगरा को ही मैंने समझू कुछ, और मैं सोचू मैं इंडियन नेशनल बनूंगा, जस्ट माई व्यू, तो इट हैज नो मीनिंग। मैं अपने कल्चर को डिस्कार्ड करके मैं बोलूँ इंडियन कल्चर, व्हाट इज इंडियन कल्चर है? हम तो एक बड़ी सोसाइटी में हैं, जैसे हमारी अगर देखो तो 15,600 लैंग्वेजेस थी, अगर आप 2011 का सेंसस पढ़ो, 15,669 लैंग्वेजेस हैं, एंड ईच लैंग्वेज के साथ कल्चर जुड़ा हुआ है। तो अगर आप बेसिकली वही इसको स्ट्रांग बनाओ, दैट इज योर ऑटोमेटिकली नेशनल, दिस इज व्हाट आई फील। दिस इज कि अपना पार्ट मत छोड़ो, अदरवाइज प्रॉब्ली ऊपर पकड़ते पकड़ते हम नीचे भी जमीन खिसक जाएगी। वेरी ब्यूटीफुल रिप्लाई सर, क्योंकि हम मुझे भी मैं भी यही कहता था, मैं तो और कंटेक्स्ट में बोलता था, मैं हमसे बड़ा पैट्रियोटिक कौन है। अगर मैं डोगरा करता हूँ तो मैं एक उस महाराजा के डिसेंडेंट हूँ जिसने 1931 में जाके अंग्रेजों के छाती पे जाके बोला था कि आई एम ए प्राउड इंडियन फर्स्ट एंड देन आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो हम वहां उस जम्मू से हैं, तो हमसे हमारी आइडेंटिटी बढ़ने से देश की नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट फोर्सेस की मजबूती ही होगी, ना कि इट शुड बी टेकन अदरवाइज। तो वेरी वेल रिप्लाइड सर, बहुत अच्छा जवाब। सप्लीमेंट्स एक्चुअली। यस नाउ सर वी आर अप्रोचिंग एट एंड ऑफ आवर ब्रॉडकास्ट, और बहुत ही इंटरेक्टिव और सर बहुत ही, आई थिंक योर वर्ड्स ऑफ विजडम वर रियली, इफ एनी यूथ और एनीवन sir who would be listening to your journey and the activities or efforts you have done for language, for culture, for army, for academics, I think you are lesson for them that how to lead a fulfillment life, full of fulfillment, और आपकी मीनिंगफुल लाइफ जो है वो आप जी रहे हैं, और आगे भी
माँ भगवती से हमेशा रहेगा कि यू विल कीप ऑन लीडिंग दिस पर्टिकुलर लाइफ एंड कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड अच्छा। टू ऑल ऑफ अस. So now the last one message for the next generation of Duggar youth, something that they could carry in their hearts for life. वो मैसेज सर क्या होगा? यूथ के लिए यही जो मैंने सारी चीज की इसका क्रक्स ही बता सकता हूँ कि अगर आपने जिंदगी में ग्रो करना है तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी जो है वो उसको मत भूलो। आप आइडेंटिटी के साथ रहोगे यू कैन ग्रो। जैसे मैं आर्मी में भी डोगरी बोलता रहा हूँ, तो दिस इज वन पार्ट। और ये तभी आइडेंटिटी आती है जब आप अपने घर में भाई बहन से स्पीक इन द लैंग्वेज, पहला पार्ट। एंड सेकंड पार्ट जो आपका होना चाहिए कि दुकान में जब जाओ स्पीक इन डोगरी, ऑटोमेटिकली यू फील प्राउड आफ्टर सम टाइम। और जब आप समझो बेंगलोर में घूम रहे हैं, आप चेन्नई में घूम रहे हैं, कोई डोगरा कोई भी डोगरी में बात कर रहा है भीड़ में, कोई तो आपको बंदा डोगरी में बात करता, आप फटाक से अटैच हो जाएंगे उसके साथ। मेरे साथ हुआ ये। आई वॉज इन मैरिज इन कैलकाटा, तो मैं तो डोगरी बोलता हूँ, मेरा मेरा भाई हम डोगरी बोल रहे थे, तो ही केम टू अस कि सर जम्मू दे हो। मैं, आओ भाई। मतलब वी बिकेम ए फ्रेंड ऑटोमेटिकली। डोगरी द यूनिफाइंग फैक्टर। तो यूथ के लिए यही मैसेज है कि जहां भी आप अभी छोटे लेवल पे अपने दोस्तों के साथ डोगरी में बात रख करो, घर में डोगरी के साथ, एंड वेन एवर यू गो टू शॉपकीपर स्पीक टू हिम इन डोगरी। हाँ, अगर उसको डोगरी नहीं आती, समझो कश्मीर का है कश्मीरी, तो देन यू हैव टू स्पीक हिंदी। अदरवाइज अगर ये तीन चीजें आप करें तो आई थिंक यू विल फील योरसेल्फ वेरी वेरी प्राउड डोगरा, एंड आपका आपकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी, बिकॉज यू विल बी सेटिस्फाइड इंडिविजुअल। आप कल्चरलेसनेस में घूमोगे नहीं लेटर ऑन। ट्रू सर, आई थिंक सर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस और मैसेज है ये वाला. मैं सर while discussing with you and while we were, मैं और डॉक्टर विकास, we keep on doing a lot of research on the guest who generally come over to our podcast. सर एक आपने जो मुहिम चलाया हुआ है स्पेशली इन स्कूल्स में, विच इज अ डोगरी पोइट्री कंपटीशन से लेके ऐसे कंपटीशन. फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर जब आप किसी स्कूल के बच्चों को कह देते हो कि अब आप इमिडिएटली डोगरी में एक निबंध सुनाओ. सो वो सारी चीजें सर एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साथ जब फॉलो करते हैं तो बच्चे को लगता है कि हाँ, मुझे डोगरी बोलने से मुझे कुछ मिलेगा. इवन दो सर एट फॉर्मेटिव एज आई थिंक सम कैरेट अप्रोच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. एंड आई थिंक जब बड़े हो जाते हैं फिर नहीं बोले तो स्टिक इज रिक्वायर्ड टू मेक देम स्पीक डोगरी. और सर साथ ही में वी वर जस्ट थिंकिंग कि सर अभी अगर डोगरी की बात की जाए तो हमारे राजमा चावल और खिलाड़ी सर खाने में तो नाउ वी आर रिकॉग्नाइज्ड. आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मास्टर शेफ्स, उसने लिखा एक जगह पे कि नाउ आई एम सर्विंग तूनी वाले राजमा फ्रॉम जम्मू इन माय रेस्टोरेंट इन यूएस. Oh, lovely, very या nice. फिर खिलाड़ी जो है मैं वो दे रहा हूँ. सो एज ए फूड वी आर नाउ एस्टेब्लिश्ड कि ये हमारे डोगरी खाने हैं. एंड Correct. नाउ सर विद योर एफर्ट्स एंड द एफर्ट्स ऑफ पीपल यू आर जिनको जो आप सबको जो हम सब आपको फॉलो कर रहे हैं सर, आई थिंक वेरी वेरी सून डोगरी लैंग्वेज विल ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड एज ए पीपल हु हैव डन सो मच फॉर कंट्री. वो लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं. जैसे डॉक्टर विकास ने कहा कि हम वो लोग हैं जो महाराजा गुलाब सिंह या इंडियन आर्मी में जो डोगरा सोल्जर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है, ये वही लोग हैं जो डोगरी में बात करते हैं. एंड सर विद दिस आई ओवर टू डॉक्टर विकास फॉर थैंकिंग यू फॉर gracing this particular podcast, milestone podcast, and giving us your precious time, sir. जनरल शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जैसे मैंने शुरू में एंटीसिपेट किया था कि ये बहुत ही एक प्यारा एपिसोड होने वाला है हमारी पॉडकास्ट का, वैसा ही रहा. आपकी लाइफ से इतने लेसन्स हैं सर सीखने को, एक हम्बल बैकग्राउंड से एक इतनी बड़ी आर्मी में, इंडियन आर्मी में आप उस पोस्ट पे पहुंचे और विद ह्यूमिलिटी, और ऐसे ऐसे आपने इंस्टांसेस शेयर किए कि यू लर्न फ्रॉम योर जूनियर. जब सीखने की बारी आई डोगरी लैंग्वेज में आपने इंडियन आर्मी में बात की, वाइल यू आर सर्विंग इन एन, इसको नेशनल फोर्स बोलते हैं, तो वहां आप अपनी डोगरा आइडेंटिटी को आपने असर्ट करते रहे, डोगरी लैंग्वेज बोली, बीइंग ए प्राउड डोगरा. और आफ्टर रिटायरमेंट जब लोग ये सोचते हैं कि अब काफी कमा लिया, काफी लाइफ जी ली, अब एक अच्छे से घर में धूप सेकते हैं, एक लॉन में बैठ के अखबार पढ़ेंगे, फिर देश के सिस्टम को कोसेंगे, नहीं. उस समय भी आपने सर अपना एक और इनिंग स्टार्ट की.
आप इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टार्ट होके इंडियन आर्मी से वापस इंजीनियरिंग कॉलेज और एकेडमिक्स में, और एकेडमिक्स में बच्चों की टीचिंग के साथ साथ आपने सर बुक्स और डोगरी लैंग्वेज पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और एक इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने डोगरी लैंग्वेज को नेशनल एनईपी में इंक्लूड करने के लिए जो एक फाइट कर रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ माता वैष्णो देवी जी से और बावे वाली माता जी से कि आपके एफर्ट्स फ्रूटफुल हो, और वो सिर्फ आप ही का एक मिशन ना हो, वो हम सब जम्मू वासियों का मिशन हो। और जो आपकी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग क्या होती है सर, वो आपकी लाइफ से पता चलता है। आज भी आप कितने सरल हैं। आपकी बातें सुन के नहीं लगता कि आप इतनी बड़े मेजर जनरल, जब कोई सोचे कि हमने आर्मी के मेजर जनरल से बात करनी है तो वो किस लेवल की बात होगी, लेकिन हमें लगा कि अपने ही एक किसी दोस्त से हम बात कर रहे हैं। इतने सरल हैं सर आप। तो बहुत सर आनंद भी मिला हमें, और बहुत से लेसन्स हैं हमारे डोगरास के लिए, डोगरा यूथ के लिए, आपकी लाइफ से सीखने के लिए। तो आपका सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे लिए, हमारी पॉडकास्ट के लिए टाइम निकालने के लिए, और एंटायर तवी टेल्स टीम की ओर से मैं आई एम ग्रेटफुल टू यू। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद सर। मैं भी आपका बड़ा धन्यवाद दोनों का, आपके तवी टेल्स का, और आप एक आई थिंक मार्वलस जॉब। मैं भी उसी में हूँ एक्चुअली, बेसिकली डोगरी में ही, बट एक बहुत अच्छा काम जिससे कि स्प्रेड विल बी, इसका हाथ बहुत लंबे हो जाएंगे आपके पॉडकास्ट, क्योंकि विल बी हर्ड बाय वेरी मेनी पीपल। यू आर डूइंग एक्सलेंट जॉब। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस, एंड अगेन आई ऑल्सो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर फॉर योर एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक एंड यू। जय हिंद सर जी। जय हिंद।